Okay, guys, we'll start. And I hope your 31st and Christmas had been amazing. And mostly, like 25th December is a very good time to game. It gives a lot of results. I think probably the people who are working in the job need to understand one thing. If it is from the season of 25th to 1st or 2nd of January, need to keep lot of holidays for them, so that this is a peak time. When you work on the time which is more favorable to you, you can build the quality of results at that time. So always make sure that if you have the holidays and other things, make sure that you just get those holidays right, because those are the peak time where you will get maximum ROI and maximum return. So today's topic was related mostly with the inner game. And see, when it comes to inner game, I have worked with lot of things when it comes to inner game. And there was a time in my life कि मैं ये चीज करता था, वो चीज करता था, वो चीज करता था, ये एन नंबर ऑफ मल्टीपल चीजें की। तो उसमें ऐसी कुछ चीजें हुई कि विच रियली ऑलरेडी गेम कर रहा था काफी सालों से। द पीपल हु आर न्यू एंड माइट कमिंग हियर फर्स्ट टाइम, आई वुड जस्ट टेल इन 2 minutes what about my I started in game in I started in 2016 when I read the book The Game by Neil Strauss। from 2016 to 18 तक मैं सिर्फ थेरी ही पढ़ता था। 2018 में मैंने पहला बुट कैंप किया था फ्रॉम वन ऑफ माई टीचर। एंड फिर 18 से एक्शन लेना स्टार्ट किया। तो एक्शन लेते 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 एक टाइम ऐसा भी आया कि सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन बिलीफ मेरा है ना, फिर भी वही था जो पहले था। एंड आई वाज थिंकिंग लाइक यार, I'm still like, lot of people, lot of my teachers used to say, bro, already assume attraction, bro, already assume that द गर्ल ऑलरेडी लाइक्स यू। और वो अंदर से नहीं आता था। अंदर से ये आता था कि यार ये शूट नहीं लग रहा है मुझे अंदर। ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि यार मैं ऐसे कैसे मान सकता हूँ। अगर मैं उस पर यकीन ही नहीं करता हूँ तो मैं ऐसे कैसे मान सकता हूँ। तो ऑल कम्स टू द लेवल ऑफ बिलीव्स। इफ द बिलीव्स आर नॉट राइट, द गेम विल बिकम अ मैसिव स्ट्रगल फॉर यू। So I'll be sharing and talking with a lot of techniques also here, but particularly our main focus will be on the technique which we will talk today, and it has helped me. I am not claiming that this technique is applicable to everyone and everyone must try this, because depend करता है bro। different practices work for different people। finally you have to figure it out what works for you। so basically it's not 2 days, but it will be like for around 5 to 6 days, 7 days of workshop। but we won't take it in a regular time, we would mostly take it on Saturdays and Sundays। and when it comes to timing, the next session we will have tomorrow, and then after that we won't have it on 31st and the another, but after that week। so I was talking about the importance of inner game। कभी कभी क्या होता है ना कि जब मैं गेम करता था तो बाहर से तो वर्बल्स बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन अंदर से जो मेरा जो सेल्फ टॉक था, जो मेरा इनर डायलॉग था, वो काफी स्क्रूड अप रहता था। मुझे ऐसा लगने लग गया था एक टाइम के बाद वो फ्लेकी होगा। ऐसा लगने लग गया था कि अरे इंस्टाज नंबर्स वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन यार ये कहीं जाएगा नहीं। तो मैंने देखा कि द बिलीव्स प्लेज अ बिग रोल। नाउ दो तरह के परसेप्शन होते हैं, एक होता है आउटर गेम, एक होता है इनर गेम। अगर आपका आउटर गेम बहुत स्ट्रांग है और इनर गेम बिल्कुल वीक है, तो होगा ये चीजें आपको बाहर से तो स्मूथ लगेगी, अंदर से वो करेज और कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। दैट हैपेंस। There are some people who are very good, even though their outer game is not that good, but their inner game is so good. Like they won't question, they don't have the doubt, hesitation, they don't have that limitation when it comes to creating attraction, comfort और seduction। मैं मेरे कॉलेज का एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का था मेरे कॉलेज में, लेट्स टेक हिज नेम निखिल, मोस्ट कॉमन नेम, क्योंकि वो यहाँ पे इस वक्त वेबिनार में भी है। तो वो देख के मैसेज भी कर रहा है। तो
उसका एक उसका एक ये होता था कि उसने एक लड़की को अप्रोच किया और काफी बातें बातें हुई, मतलब एकदम एकदम वियर्ड जैसा, एकदम विटामिन जैसा एकदम अप्रोच किया। तो मुझे लगा यार वर्क नहीं करेगा इसके लिए, ये अभी हो गया फ्रेंड्स में। फिर उसने किसी लड़की के लिए गिफ्ट गिफ्ट उसी लड़की के लिए गिफ्ट वगैरह लेके आया, और लड़की उसे आंखों में पानी, यू लव मी सो मच, या एंड दे गॉट इनटू रिलेशनशिप। और मैं सोच रहा था यार इसने नीडी से नीडी हरकतें की, why it does work for him? Because when you behave too much of needy, it really doesn't work for you. And I was thinking, yeah, although I have read so much game, I have read so much about the pickup, I have read so much about the darker psychology, I am aware of the all red pill stuff, but इसने तो ऐसा कुछ बिहेव नहीं किया, फिर भी क्यों काम किया इसके लिए? So then I figured it out. Maybe his inner game was very sorted. So a lot of people, even though their outer verbals are not perfect, even their outer things are not that much aligned, but their inner game is so sorted, so aligned that it really helps. Now, क्या सिर्फ इनर गेम मैटर करता है? Someone is asking what is the difference between inner game? जो हम बाहर बात करते हैं, that's all the outer game. But when it comes to our inner dialogue, when it comes to our belief, when it comes to our thinking, when it comes to our unconscious behavior, when it comes to lot of the inner things that is going out inside us, that is called inner game. Inner game is your inner reality. If your inner reality is strong, then you have already built certain level of foundation that will help you to build, you know, techniques, strategies, methodologies. All doesn't work if the fundamentals are screwed up. So, I already did one of the webinar which was related with inner game, and they both needs to be equally strong. Guys, can you see my screen? Type yes, no, something if you can see my screen. So this is something inner game versus outer game. होता ये था कि जब मैं बाहर जाया करता था, तो पता है, मैं 2-2 3-3 घंटे प्रैक्टिस करता था, वर्बल्स रखता था, 6-6 बूट कैंप्स किए थे, 4-4 मेंटोरशिप किया था, अलग अलग पेड टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कोचेस। और होता ये था कि मैं बाहर तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से वो ये नहीं आ रहा है, वो गट कन्विक्शन नहीं आ रहा है। और अंदर से व्हेन आई यूज्ड टू हैंग अराउंड एंड सी द अदर पीपल, आई यूज्ड टू फील दैट आई रियली डोंट डिजर्व दैट। एक एक वर्दीनेस, एक फैक्टर होता है कि अगर मैं अपना वर्थ नहीं समझता, in my eyes I am only at this level, no matter how cool I act, no matter how outer techniques I try, no matter how banter, tease, push pull, nets, qualifier, frame control and all those things I do, if I have too much resistance and doubt inside, those techniques don't work. Or it works at certain period of time, but it doesn't work. So they both have to be congruent. The people who doesn't know what inner game is, I would suggest, I have already done a 3 days of workshop, which is already available on YouTube. In that, we have described that there are three things if you are working on your dating life. One is the outer game. Outer game is all understanding about the techniques. कि अरे मैं अट्रैक्शन जनरेट करने के लिए क्या करूं, नेक करूं, पुश पुल करूं, बैंटर करूं, टीज करूं, वैल्यू डेमोन्स्ट्रेशन करूं, स्टोरी टेलिंग करूं. So these are techniques. Now, the second thing is your game plan. You need to have a proper game plan. Step 1 पे क्या करूँ, step 2 पे क्या करूँ, step 3 पे क्या करूँ, step 4 पे क्या करूँ, step 5 पे क्या करूँ. That is your game plan. And the third aspect is your inner game. So when it comes to inner game, this is 3 days of program. It's already available on YouTube. You can go through it and watch. You will understand a lot of things, because techniques doesn't work if the inner things are not aligned. If you are really not aligned, वो ऐसा होता है कि आप जो बोल रहे हो आपको उस पर ही विश्वास नहीं है, वो ऐसा फेक ही लगता है। गेम में ऐसा होता था मेरे साथ में कि मैं जा रहा हूँ, गेम कर रहा हूँ, और मुझे बहुत ऐसा फेकू टाइप में लग रहा है, यार मैं क्या बोल रहा हूँ। यो होता यह था कि योगी भाई के साथ, साहिल भाई के साथ मैं गेम करता था पूना में, तो उनकी जो कुछ बातें हैं जो उनके लिए वर्क कर रही है, तो मैं क्या करता था, उसको ही कॉपी कर लेता था और कॉपी करके उसको बोलता था। अब मैं ये देख रहा हूँ कि उनके लिए तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मेरे लिए वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कितना फेक लग रहा है भाई।
if you are in game, you do understand that these things happened with lot of. So there's another thing is facts and beliefs. you know कोई भी चीज है, तो फॉर एग्जांपल, यू नो अगर किसी, अब मेरा एक दोस्त बोल रहा था यार, 4 का सेट खेला गया, 3 का सेट खेला गया, तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट सम अदर गेम, और मेरे दिमाग में ये इंटरप्रेट हो रहा है, एक सेट मतलब एक लड़की, 3 सेट मतलब 3 लड़की। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, यू नो देर आर सर्टन थिंग्स जो ऑलरेडी कही जाती है, उसके ऊपर हम अपना एक इंटरप्रिटेशन बनाते हैं। सो देर आर सर्टन थिंग कॉल्ड फैक्ट, एंड वी ऑपरेट थ्रू आवर बिलीफ सिस्टम। हम बिलीफ सिस्टम से ये सब चीजें देखते हैं, बाहर जो हो रहा है। सो एक मेरा दोस्त है, काफी गुड था, ही इज वेरी गुड विद वुमन, बट ही इज नॉट, कभी उसने जिंदगी में एक भी गोल्ड अप्रोच नहीं किया, उसने कभी एक भी लड़की को अप्रोच नहीं किया, एंड ही इज वेरी गुड। तो एक बार हम क्लब में गए थे, और मैंने थोड़ा डांस वांस किया लड़की के साथ में, और इंस्टा विंस्टा ले लिया। और वो जो दोस्त था, जो मेरा नेचुरल, यूट्यूब चैनल नेम इज Rebellious Raj. I will share you the link on WhatsApp group also. Please do pin and message me in case if I forget. या फिर authentic connection. And I will be sharing the same video. So don't worry. So you will get the recordings also. But most probably after 15 to 20 days. Recording 15-20 दिन के बाद में मिलेगी, क्योंकि I have to compile, edit and everything and do the work and then upload it. So coming back to the point. तो मैं लड़की के साथ में बात कर रहा था क्लब में, एंड ही इज अ वेरी नेचुरल, ही इज 10 टाइम्स 15 टाइम्स मोर सक्सेसफुल देन मी एज कंपेयर टू एनी अदर गुड कोचेस इन इंडिया। ही इज दैट लेवल ऑफ गाय। तो मैंने इंस्टा, आई जस्ट हैड अ कन्वर्सेशन विद गर्ल, आई डांस विद हर, आई वाइब विद हर, फिर इंस्टा ले लिया, एंड मुझे अंदर से लग रहा था कि ये फ्लेक ही रहेगा, बीइंग इन गेम, बीइंग नोइंग ऑल दोस थिंग्स यार, नहीं मुझे नहीं लगता है ये दूसरे दिन वर्क करेगा। लेकिन वो पर्सन का ऐसा मानना था, वो मुझे बोल रहा है ब्रो तेरा तो अमेजिंग है यार, तूने तो बहुत क्लोजेस किए होंगे, तेरा तो बहुत सक्सेस रेट रहा होगा। और मैं उसको देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं तो 1.5 साल से गेम कर रहा हूँ यार, मेरा तो एब्सोल्युटली जीरो रहा है, ये पर्सन ऐसा क्यों सोच रहा है? तो जस्ट बिकॉज बाहर से कुछ देख लिया उसने, तो उसने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया, और उसने बोला भाई अगर मैं ये कर लूँ ना, पहले तो भाई मेरे से कोई कोल्ड अप्रोच होता नहीं है भाई, वो बहुत डेंजर लगता है और मुझे बहुत डर लगता है, मैं कभी किया नहीं और वो करूंगा भी नहीं। एंड ही इज वेरी गुड विद, ही इज सॉलिड लेवल नेचुरल। सो वो मुझे ये बता रहा था, और वो बोल रहा था भाई ऐसा अगर मैं करने लग गया ना, तो मैं तो बादशाह बन जाऊंगा। मैंने क्या बात कर रहा है, पर मुझे लगता है ये फ्लेक हो जाएगा ब्रो। और वो बोल रहा है नहीं नहीं फ्लेक क्यों होगा भाई, लड़की नंबर दे रही है तो तुमसे इंटरेस्टेड ही है, एंड शी इज ऑलरेडी डन। मैंने बोला ऐसा क्यों है इसका माइंडसेट, ऐसा क्यों इंटरप्रेट कर रहा है, ऐसा क्यों इतना ऑप्टिमिस्टिक है? तो मैंने पूछा उसको ऐसा क्यों लगता है तेरे को? पता नहीं यार, वो मेरी लड़की से बात होती हो जाती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार शी इज इनटू, और चीजें अपने आप हो जाती है। मतलब वो नॉनसेंस यार, इसका बिहेवियर भी ऐसा नहीं है, कोई गेम ही भी नहीं लगता है। Then I understood his belief system is very strong. He already assumes himself that my self-worth, my self-love, my self-image is so high that even if I try a basic level of thing, even if my outers are not that much good, people still like me. I'm wanted and I'm desired everywhere, everywhere. और दूसरी तरफ मैं हूँ, I need to rely so much on the outer game, so much on the technique, so much on my verbal, so much on going out and approaching, that I really don't feel from inside. Inside से वो believe ही नहीं होता है। Let me share you another example. होता ये है कि when I was working, 4 साल में जब मैं गेम सीख रहा था, तो मैंने 4 साल में कम से कम 13 जॉब कर ली। तो मेरे सुबह शाम दिमाग में सिर्फ गेम रहता था, और पागल हुए जा रहा हूँ गेम में। रिजल्ट्स तो मिल नहीं रहे, 2 साल तक मुझे एक भी रिजल्ट नहीं मिला, और गेम में इतना पागल हो चुका हूँ। लेकिन जॉब का एक ऐसा सीन था कि मुझे वो जॉब्स अच्छे मिले हैं जहां पे मैंने कोई एफर्ट नहीं दिया। मैं मुझे लगा हो गया तो हो गया, नहीं भी हुआ ठीक है। और बहुत से ऐसे जॉब थे जहां पे मैं जाता था, इंटरव्यू इंटरव्यू देता था, और मुझे लगता था हो ही जाएगा, इवन दो द इंटरव्यू मैंने कुछ अच्छे से नहीं दिए थे। तो द इनर कन्विक्शन, इनर गट सपोर्ट्स यू। मेरा एक स्टूडेंट था, आईटी में था, पूना में रहता है, तो उसको बोला कि देखो भाई, आपका अगर
यहाँ से जॉब अगर छूट गया, हाउ मच डू यू बिलीव कि आपको नेक्स्ट जॉब मिल जाएगा? अरे बोले ऐसे मिल जाएगा यार। मैंने बोला क्यों? क्या आपने बहुत प्रिपेयर किया है, क्या आपको बहुत नॉलेज है? अरे नहीं यार, बट पता नहीं मुझे जॉब मिल जाता है, ऐसा मेरे को लगता है। Maybe his belief was like that. So everything at a certain period of time, belief really do plays a role, and it plays a huge role. Everything is about the belief. I'm not discarding the importance of outer game. I'm not discarding the importance of structure. I'm not discarding the importance of using the techniques or lines. What I'm saying is, inner game is all your inner dialogues, that when you go and run your verbals, run your structure, run your routines, or you might be too much into canned material or script, borrowing from this book, that book, that book. If you don't believe it will work, स्टार्टिंग में काम कर जाएगा लेकिन बाद में काम नहीं करेगा. So inner game do has major aspect related with your self dialogue, inner dialogue, how you perceive your world, how do you perceive the experiences, how do you perceive your reality, how much you assume about yourself. So the cycle of belief ऐसी चलती है. This is something what I call cycle of belief. होता ये था कोल्ड अप्रोच में. मैं बाहर जा रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ रोज के, मतलब वीकेंड में फ्राइडे टू संडे में कम से कम 50 से 100 सेट किए जा रहा हूँ. सेट के इंस्टास नंबर वगैरह मिल रहे. थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आ ही गया था उस टाइम पे, एक 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 1.25 साल बाद. और मैं वापस आ रहा हूँ. वापस आने के बाद में मैं ये सोच रहा हूँ यार, ये इंस्टा था, इस सेट के साथ में मैंने 5-6 घंटे बिताए, इस सेट के पास में मैंने 3-4 घंटे बिताए, इस सेट के साथ में इंटरेक्शन अच्छा हुआ था, लेकिन सब फ्लेक हो रहे हैं, डे टूज नहीं हो रहे. और मेरा एक बिलीव बनता गया है यार, कोल्ड अप्रोच में बहुत सारे फ्लेक ही होते हैं, और यार ये गेम वे में आना यार, ये बहुत नंबर्स गेम है. क्योंकि मेरा मेरा ही बिलीव ऐसा कि आई डिडंट यूज टू बिलीव दैट इज इट रियली गोइंग टू वर्क फॉर मी, इज इट रियली गोइंग टू हेल्प मी. तो एक एक लूप में फंस रहा था. तो यहाँ यहाँ जो है, ये मेरा बिलीफ थे कि अच्छा है, इट गेम नीड्स टू बी ए ह्यूज स्ट्रगल. जब तक आप ऐसे एकदम ढेर सारे करोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा. तो एक ही एक ट्रैप में अटका पड़ा रहता था. और एक टाइम के बाद में ना बहुत बहुत निगेटिव और बहुत खालीपन आने लग गया गेम में. ऐसा ऐसा लगने लग गया कि यार, गेम काम भी करता होगा, साला मेरे लिए काम नहीं कर रहा है. तो ये जो पैटर्न आया, तो आई थॉट मे बी देर इज समथिंग दैट आई एम मिसिंग. और उस समय पे काफी अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने लग गया था, अलग अलग वर्कशॉप्स अटेंड करने लग गया था, अलग अलग सेमिनार्स में जाने लग गया था. और पहली बार मैंने कुछ चीजें सुनी थी. एवरीथिंग इज बिलीव, इफ यू बिलीव यू विल हैव इट, इफ यू डोंट बिलीव यू इट वोंट हैव इट. तो मैं सोच रहा था कि देयर माइट बी सम वे. तो ये जो पैटर्न है, वो एक ही पैटर्न में चीजें होने लग गई थी. रोज जाओ, एकदम ड्रेन्ड एनर्जी, पूरे नेगेटिव माइंडसेट के साथ में. थोड़ा बहुत फील गुड फैक्टर आ जाता है गेम में अगर आप कम से कम 6 महीने 8 महीने से रोज बाहर जा रहे हो तो. एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग राइट. बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेरे पास नॉलेज नहीं था, मेरे पास में विजडम नहीं था, मेरे पास में स्ट्रक्चर्स नहीं थे, कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास. पर मेरा बिलीफ जो है वो काफी स्क्रूड अप था. सो this certain kind of belief is there. Suppose you approach a girl, और ये कुछ मेरे beliefs थे. Let's understand with example. Everything is going right, but it hasn't worked before. मतलब अगर लड़की को मैं ओपन कर रहा हूँ, हुक भी हो रहा है, सेट चीजें आगे भी बढ़ रही है, कन्वर्सेशन हमारा आगे अच्छा चल रहा है, तो अब तक माइंड में यही दिमाग आता था कि यार, अब तक तो वर्क नहीं किया, अभी क्यों वर्क करेगा. ऑलवेज सेल्फ डाउट ही डाउट. 2-3 बार ऐसा भी हुआ था कि एवरीथिंग वाज ओके एंड द गर्ल वाज टेलिंग मी वर्बली, आई रियली लाइक यू, यू आर रियली नाइस पर्सन, आई रियली, मीट करते हैं, डेट पे जाते हैं. और मैं सोच रहा था यार, इसके पहले भी तो बहुत सारे फ्लेग हुए हैं, ये भी शायद फ्लेग ही हो जाएगा यार, कोल्ड अप्रोच में चलता ही है, फ्लेग होते ही है. दूसरा ये भी था कि मैं इनर गेम, मतलब ऐसा लगने लग गया था अगर मेरा गेम ही पॉइंट पे नहीं है, आई नीड टू हैव द गेम एटलीस्ट द लेवल ऑफ 10 on 10, तो ही क्लोज होगा. थोड़ा कम ज्यादा रहे तो नहीं चलेगा. अगर इफ आई मेक अ सिंगल मिस्टेक, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क.
और दूसरा ये भी होता था, और ये भी एक बिलीफ रहता था कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई नीड टू हैव द बेस्ट, to have the best results right now. Right now, in right this situation at this point of life, I am not really that good. तो मैं, किसी ने मुझे बोला कि ब्रो यू हैव टू वर्क ऑन योर इनर गेम, डोंट यू फील रिजल्ट्स लीड्स टू इनर बिलीफ? हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे. देयर समवन हैज आस्क्ड मी, डोंट यू बिलीव दैट रिजल्ट्स लीड्स टू इनर गेम? नो, नॉट नेसेसरी. हाँ, sometime it comes. Sometime your outer game fixes your inner game. Sometime it happens, but not always necessary. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. द क्वेश्चन वाज, आई विल रिपीट द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आशु एंड ही सेज, डोंट यू फील दैट रिजल्ट लीड टू इनर बिलीफ? मतलब अगर लड़की के साथ में अगर आपको रिजल्ट मिले हैं तो आपका बिलीफ बनेगा. किसी किसी का बनता है, किसी किसी का नहीं बनता है. मेरे केस में दोनों हुआ है. प्रो अगर रिजल्ट से ही बिलीव बनता था तो आई लॉस्ट माई वर्जिनिटी एट द एज ऑफ 14, तो मेरा तो सबसे स्ट्रांग बिलीव रहना चाहिए था अब तक, सबसे पावरफुल. बट फ्रॉम द एज ऑफ 14 to 28 आई वाज जीरो, नॉट इवन अ सिंगल फीमेल फ्रेंड. सो इट्स नॉट नेसेसरी. आई नो वन गाय जो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन अभी उसका बिलीफ एकदम वियर्ड है. अरे अभी उम्र हो गई, अभी कहाँ ये. एंड ट्रस्ट मी, इट डजंट लुक गुड. So it's not necessary if you are saying that results will lead to belief. Not necessary. Results मिलता है, yes of course. That's what Jay is trying to say, कि results मिलता है पर बहुत बार belief नहीं बनता है. That happens. If you don't have the belief to repeat the process again and again, your belief is not formed. कभी कभी ये होता है कि let's take the example of job. I was working with Simplilearn and I was used to sell lot of PMP, project management certification, DevOps certifications. तो 30 30 years के 25 25 30 30 साल के लोग मुझे फोन लगा के बोलते थे, अरे सर वो हम एक जॉब में थे, फिर 15 20 30 साल का यही कंपनी में एक्सपीरियंस है, अभी हमको. तो देयर बिलीफ अबाउट गेटिंग द न्यू जॉब वाज मोस्टली टेरेबल बिकॉज दे हैव स्टक इनटू द सेम साइकिल. सो नॉट नेसेसरी, बट हाँ ऑफ कोर्स फॉर सम पीपल इट वर्क्स. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लाइक हाउ इट वेंट. सो एट 2014 में मैंने पहली बार किताब पढ़ा था. सो इट वाज related with how to succeed in life by irritating frustration and failure by Abdul Salam Chos. And the book was related with self help motivation. उसके बाद में मैंने शो खेरा की किताब वगैरह पढ़ा. एंड देन आई स्टार्टेड विद लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प जर्नी. तो मैं एक के बाद एक किताबें पढ़ता रहा. एंड coincidentally at that time I went through the video. The video was regarding law of attraction. तो मैंने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देखा, उसमें दिस वाज द पर्सन, बॉब प्रॉक्टर. सो उसका एक किताब मिला था मुझे, एंड द बुक वाज रिगार्डिंग मनी. And he was talking a lot about the inner psychology, inner mindset, inner belief, and how the belief shape into the reality. Then I went to this Deepak Chopra, You Can Heal Your Life. Guys, if you have not watched that movie now, The Secret, watch that. I'm not saying that whatever they are saying in the law of attraction thing is true, but to some way it works. To some extent. I'm not saying everything you believe that is right, but to some extent. तो मैं फिर काफी वर्कशॉप्स वगैरह वगैरह अटेंड करना शुरू कर दिया. दिस वर्कशॉप, दैट वर्कशॉप, कि आखिर में तो बिलीव ही चेंज करना है ना. आखिर में तो माइंडसेट का खेल है सब कुछ. इफ अ माइंडसेट इज सॉर्टेड एंड थॉट्स बिकम द थिंग. तो मैं उस ट्रैक में चले गया. एक सेमिनार, दूसरा विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, मेडिटेशन. एंड while working on that journey, like I tried a lot of things how to fix the inner game. तो मैं बोला, let's change something within, बिकॉज खेल तो इनर गेम का ही खेल है, तो पूरा तो उस पे ही वर्क करते हैं, थॉट्स पे, एक्शंस पे, रिजल्ट्स पे, बिलीफ्स पे. एंड आई गॉट स्टक. तो काम तो मैं ऐसा कर रहा था कि मैंने ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वहां पे कर रहा था. तो मैंने एक कोच कोचिंग लिया था, तो ही यूज टू रिकमेंड विपासना. मैंने बोला यार विपासना से सही में बिलीफ फिक्स होता है क्या? मैंने तो ऑलरेडी, तो वो बहुत बड़ा कोच है इंडिया का. तो मैं, वो रिसेंटली विपासना जाके आया था, तो मैंने बोला था लेट्स कॉल हिम मिस्टर के. तो उसका
चैनल था, तो मैंने उसको बोला था कि भाई ऐसा ऐसा है, आप तो बोल रहे हो विपासना से ये सब होता है, डिटैचमेंट आता है, मैं तो ऑलरेडी 6 बार विपासना करके हूँ, और अब तक मैंने 14 बार विपासना की है। तो वो बोला यार मेरा तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं गिरा, हाँ मुझे थोड़ा बहुत डिटैचमेंट सीखा, समझा, डिटैचमेंट अवेयरनेस वगैरह ये सब समझा मुझे वहां करके। फिर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में गया, आर्ट ऑफ लिविंग के सब कोर्सेज किए, फिर इनर इंजीनियरिंग किया सदगुरु का। बहुत बहुत, you name the spiritual organization that I haven't been, I have been to almost all the spiritual organization। और कैसे काम करे, उस पे कैसे बनाए, और एक के बाद एक किताबें पढ़ता रहता था। या लेट वर्क ऑन दिस बुक, लेट डू दिस वर्कशॉप, दिस सेमिनार, एक एक सेल्फ हेल्प वर्कशॉप, एक एक सेमिनार। लाइक आई वाज लाइक मैड साइको, लाइक बिलीव्स चेंज करने हैं भाई। एंड these are certain, like lot of people ask me about the books. Technical books won't help you, but the fundamental books definitely help you। तो ये वो किताबें हैं जो मैंने पढ़ा है। These are all related with inner growth। And I have highlighted this book, Wisdom of Mountains by Pradeep Pawar। So I started and I was reading like lot of inner game कैसे fix करते हैं, ये कैसे करते हैं। If you want the list of books, this is my Instagram page, Reads with Raj। रीड्स विथ राज, RAAJ। सो और यहाँ पे जो ये दिख रहा है, दिस लिंक, इस लिंक पे मैंने सब बुक्स लिस्ट डाउन किए हैं जो मैंने पढ़े हैं, उसके ऊपर मैंने टॉपिक सब टॉपिक्स भी लिखे हैं। इफ यू वांट टू गो, गो विथ इट। एंड दिस वर द बुक्स। और ये कुछ वर्कशॉप्स थे मैंने अटेंड किए। किसी ने बोला भाई फायर वॉकिंग करो, किसी ने बोला मार्शल आर्ट्स करो, किसी ने बोला स्कूबा डाइविंग कर लो, किसी ने बोला ये कर लो, किसी ने बोला इनर चाइल्ड हीलिंग कर लो, किसी ने बोला ये वर्कशॉप कर लो, किसी ने बोला, ट्रस्ट मी, आई पेड टू ऑलमोस्ट लाइक कम से कम 200-300 तो वर्कशॉप्स किए होंगे, पेड, प्राइवेट कंसल्टेंटशिप, मेंबरशिप, ये वो, जस्ट टू फिक्स इनर गेम, इनर गेम, इनर गेम। वही दिमाग में चलता रहता था। विपासना आई डिड लाइक 14 टाइम्स। एंड फिर भी, और फिर मैंने कुछ थेरेपिस्ट हायर किए, वन ऑन वन वर्क भी किया। कुछ इनर वर्क से रिलेटेड होते हैं, शैडो वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग, ये वो, और बहुत सारी चीजें, NLP, हिप्नोटिज्म, n number of things, not to bore you with it, like, and these were some people that I have learned lot of workshop। काफी थे, अभी तो मैं इतना डाला नहीं because I don't want to bore with। So इतना करने के बाद 2018 से लेकर 21 तक, 2021 में मुझे पहला रिजल्ट मिला, उसके बाद में दूसरा रिजल्ट मिला, उसके बाद में मैं रिलेशनशिप में चले गया। सो आई वाज डेटिंग एंड गेम वेम करता था। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ मुझे थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है, थोड़ा बहुत रिजल्ट्स भी आए, लेकिन ईगो फरमार पे मैंने एक अलग सा एक ईगो बना लिया अपने ऊपर, गेम के ऊपर, कि हाँ भाई मेरे को आता है, ये आता है। पर डीप डाउन जब मैं अकेले जा रहा हूँ, मैं बाहर तो लोगों को मस्त डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, देखो कैसे होता है गेम। गेमर्स ना, गेमर्स गेट दैट हाइप। अगर आपके स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्लोजेस हो गए ना, तो आप ऐसे 3-4 नए नए लोगों को लेके जाओगे, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओगे, टेक माई नेचुरल फ्रेंड टू द फील्ड बिकॉज दे कांट डू एनीथिंग, and show them how good you are, how cool I am। It just polishes the ego। And trust me, if you are that guy, you are really screwing yourself a hell a lot, and it will hamper you in the long run। क्योंकि आपने अपने ऊपर एक पॉलिश लगाना शुरू कर दिया है कि आप कितने कूल हो, आप कितने स्वैग हो। लेकिन डिप डाउन जब मैं घर पे जाता था तो मुझे ये पता रहता था, किसी को, हर इंसान को अपनी सच्चाई पता होती है। हर इंसान बाहर झूठ बोल सकता है, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। Don't get into habit। I met a lot of people, they will act so cool, they will have so cocky frame, they will act so much in a gimmick way in front of me and try to prove me। भाई उससे क्या मिलेगा तुमको? सबको, हर इंसान को अपनी अपनी सच्चाई पता होती है। आपको आपकी सच्चाई, आई लाइक डोंट ट्राई टू गो इनटू दैट रेस टू गो एंड अदर। बट थोड़े बहुत रिजल्ट्स वगैरह मिले थे। दो 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 रिजल्ट आए थे मेरे पास सिर्फ। और लेकिन मेरा बिलीफ ऐसा चेंज नहीं हुआ था। जिस पर्पस से मैं गेम में आया था, जिस पर्पस से मेरे पास में आए थे, थोड़ा बहुत ईगो और खुमार चढ़ा लिया था, क्योंकि अभी आपके पास बोलने के लिए भी है। अभी आपने इतने बुट कैंप भी की है, इतने कोचिंग भी लिया है, इतना इन्वेस्ट किया है, इतना काम किया है। नॉलेज भी एक अलग तरह का ईगो दे देता है कि आप कितने देर शाइने हो, लोगों को शाना समझ में। बट
I thought that there are different blocks in the mind. हर पर्सन के एक कुछ ब्लॉक्स होते हैं. तो आई वॉज वर्किंग ऑन लॉट ऑफ एस्पेक्ट एंड काम भी किया था, एक ईगो का एक कुमार भी था, गेम भी थोड़ा बहुत ठीक ही चल रहा था. बट फिर भी कभी कभी क्या हो जाता ना, मैं स्टक हो जाता था माइंड में. इतना गेम करने के बाद में, मतलब रोज के 3 या 4 घंटे रोज मंडे टू थर्सडे देने के बाद में, और फ्राइडे सैटरडे संडे तो पूरा ही दिन, और 4 4 5 5 बूट कैम्प करने के बाद में, 3 3 4 4 मेंटरशिप लेने के बाद में, फिर भी कभी कभी वो एक माइंडसेट ब्लॉक रहता था कि आई रियली डोंट डिजर्व वुमन, आई रियली डोंट डिजर्व नाइन्स एंड टेंस, आई रियली डोंट, I'm not that all deserving. I need to have something. I need to have body. I need to have game on point. I need to go out. अगर मैं 4 5 दिन बाहर नहीं गया तो मुझे ऐसा लग जाता था कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है मेरी, सब कुछ. फिर भी मैंने एक देखा कि मेरे बिलीव्स ही फिक्स नहीं हो रहे. और हुआ ऐसा बहुत बार कि अब रिजल्ट तो है मेरे पास, फिर भी मैं बाहर जा रहा हूँ, तो कभी कभी मुझे लग रहा है यार गेम वर्क करता है कि नहीं, या फिर मैं गेम भूल गया पूरा. तो कभी कभी वो स्टक फेज आ जाता था. कभी कभी सेट्स अच्छे भी जा रहे हैं लेकिन माइंड में एक ब्लॉक आ जाता था. अब इतना कुछ करने के बाद में और एक फ्रीज मूवमेंट आ जाता था. जैसे वो छिपकली देखी है ना, वो कभी कभी अटक जाती है तो उसको शुक करो, पानी डालो, कुछ भी करो, तो काम नहीं करती. ऐसा मेरे साथ में हर बार हुआ. कोल्ड अप्रोच कर जब स्टार्ट किया था, तो कोल्ड अप्रोच जाने के पहले मैं स्टार्टिंग में ऐसा फ्रीज हो जाता था. तो इफ यू आर न्यू एंड इफ यू गेट इनटू दैट एंजाइटी और पैनिक मोड, अगर आप अटक जाते हो, कभी कभी ये होता है कि एक एक तरह तरह के लोगों के तरह तरह के लेवल पे ब्लॉक्स होते हैं. कुछ लोगों का होता है पुलिंग के टाइम पे होता है, कुछ लोगों का होता है क्लोजिंग के टाइम पे होता है, कुछ लोगों का होता है डेट्स पे होता है, कुछ लोगों का होता है इतना सक्सेस मिला है फिर भी उनको लगता है कि वो अधूरे ही है. आई ट्रस्ट मी, आई हैव द स्टूडेंट हु हैव लाइक अराउंड 100 200 150 250 प्लस ऑफ सक्सेस रेट विद वुमन. And when I see that they have still not fixed with their belief. So the reason is the blocks. ऊपर ऊपर से लेयरिंग किया, ऊपर ऊपर से सिर्फ काम किया है, अंदर से अभी भी वही है. योर इनर थिंग स्टिल, you're still that person inside which you have already been. बस बाहर से काम कर लिया, बाहर से लेयरिंग कर लिया. या रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, लेट मी चेक, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी. हाँ, रिकॉर्डिंग है. तो ऐसा था. देन आई मेट दिस पर्सन, और इसके बारे में ना, अ, इसका मैंने एक वर्कशॉप किया था. हिज नेम इज प्रदीप पवार. ही इज कमिंग इनटू पुणे आई थिंक ऑन 5th. तो ही टॉक्स लॉट अबाउट द एनर्जी स्टफ, अदर थिंग, साइकोलॉजी. और मुझे विश्वास नहीं था, मुझे लगता था यार साला बेतुकी बात है, मैंने सब किया, इसके बताने ये कौन सा शायना है. मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था. तो मेरा दोस्त शिवम था, वो वहां पे मुझे लेके गया था वर्कशॉप में ईएफटी के. हाँ. तो ही वो मुझे लेके गया था, और वहां पे सब बैठ के अपने बिलीव्स के ऊपर काम कर रहे हैं. तो वो कुछ तो भी बता रहा है, फ्रीक्वेंसी, अलाइनमेंट, इफ यू ट्यून इन टू दैट फ्रीक्वेंसी, और ये सब स्टोरी बता रहा है उसकी. और उसने बताया कि मैंने 40 साल जिंदगी में संघर्ष किया, मेरे पास में पैसा नहीं आया कभी, लेकिन अभी मैं कुछ भी काम नहीं करता, बहुत पैसा आ जाता. Like, because I've tuned myself into that frequency. And then I thought, maybe I have read Robin Sharma, maybe I have read a lot of went through courses of Vishen Lakhani, maybe I have attended a lot of spiritual program, but I am not able to relate with this concept. So he said, there is certain block. If you have that block, you want able to insert something new. और मैं किए जा रहा हूँ, विजुअलाइजेशन किए जा रहा हूँ, ऑल द टेक्निक्स वगैरह ये हो रही है. लेट मी गिव यू एग्जांपल, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल गिव यू एग्जांपल. सो दिस इज समथिंग. ये ग्लास है मेरा, इसमें अभी पानी भरा है. अभी इसमें मैं कितना भी पानी डालूं, इसमें कितना भी पानी पोर करूं, तो ये ऑलरेडी भर चुका है, ये खाली नहीं है. अगर इसमें बहुत गंदा पानी है, बहुत अगर गंदा पानी है, तो आप उसमें कितना भी ये डालो, वो पानी गंदा ही रहेगा. सो सेम हैपेंस विद बिलीफ. इफ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अगर वो चीजें बहुत होल्ड ऑन है आपके अंदर,
तो नो मैटर हाउ मच पोर यू बाय अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन एंड अदर थिंग्स, वो वर्क नहीं करता है। थोड़ा बहुत फायदा होता है उसका ऊपरी ऊपरी स्तर पे, बट अनकॉन्शियस में, बॉटम में वो चीजें नहीं होती। व्हेन इट कम्स टू अफर्मेशन ब्रो, मैं ऐसा इतने बड़े बड़े है ना, इतने बड़े बड़े रजिस्टर भर जाते थे, दिन भर अफर्मेशन लिख रहा था, आईने के सामने बैठ के 2 2 3 3 घंटा मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि दिस एंड डीप डाउन एट द कोर इट वाज नॉट गिविंग मी दैट समथिंग, ओके यार, आई ट्रूली बिलीव। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों, तो इस पर्सन ने एक बात बताई कि कुछ मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, वो ब्लॉक्स अगर है तो ये चीजें काम नहीं करती, क्योंकि ऊपर से आप कितना भी सुधार करो। एंड देन आई वेंट टू ओके लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, फिर मैंने एक एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्कशॉप किया था, दैट वाज ऑफ कोच BSR। तो उसमें भी ये कहते हैं कि वो जो चीजें हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाई गई चीजें, लेकिन if inside there is a lot of damage, if your self-worth, inner issues and a lot of other things are literally screwed up, and then the outer things don't work. We'll talk about all those things further. फिर ऐसी चीज हुई कि just a minute, someone is saying audio आ नहीं रहा है, guys please can you check, is the audio not working? क्लियर है भाई, थैंक यू। सो इस पर्सन का एक एग्जांपल बताता हूँ, और मैं उससे मिलने गया, मैंने कहा चलो बात बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल और नॉलेजेबल तो भाई है, तो उसने कुछ वर्कशॉप वर्कशॉप के बारे में बताया उसका। और उसने मुझे एक सवाल पूछा कि तूने इतने वर्कशॉप किए, इतना प्रोग्राम किए, इतने ये किए, और कोल्ड अप्रोच भी किए, तो मेरे पास उस टाइम पे सिर्फ 2 ही रिजल्ट थे। आई वॉज लाइक चल ठीक है, 2 रिजल्ट है। तो उसने मुझे ये पूछा कि, और आई वाज जस्ट, वो एकदम रिलैक्स बैठे थे, उम्र में भी काफी बड़े थे मेरे से और काफी वेल रेड पर्सन थे, तो ऐसे पर्सन को सोच के ही बोलना पड़ता है सबको। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि, उन्होंने मराठी में बोला, आई विल ट्रांसलेट इन हिंदी, तूने इतना किया है, 101 किताबें पढ़ी है, इतने वर्कशॉप किए, ये किया है, वो किया है, वो किया है, तुझे ऐसा लगता है क्या कि अगर तूने ये सब कुछ नहीं किया रहता था तो तेरे को रिजल्ट मिलते थे? मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो बोले यही तो तेरा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। हाँ, ये कैसा जवाब है, आदमी एड़ा बेड़ा हो गया क्या? कुछ करने से तो कुछ मिलता है। तो बोले किसने बोला? बोला है, अरे ये तो रूल है ना भाई। मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उसने बोला, तेरा स्ट्रगल, तेरा सबसे पहला, मतलब मैं घर पे जाके सोच रहा था, मतलब मे बी दैट गाय इज मेकिंग सेंस, क्योंकि ये जो चीज बता रहा है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल, सम पीपल डू गेट एडिक्टेड टू स्ट्रगल्स, same applies with game. In game you also get to sometime too addicted to that gamey stuff, and a game becomes you a struggle. कुछ लोगों का ऐसा बिलीव होता है कि बगैर संघर्ष किए, बगैर मेहनत किए पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल ही किया है। जैसे मेरे पेरेंट्स का बिलीव है, तू ऐसे किसी को भी पैसे क्यों दे देता है, उसने काम नहीं किया तो। मैंने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि उनका बिलीव है, बिकॉज दे हैव बीन चीटेड लॉट इन देयर लाइफ, कि लोगों ने पैसे लिया और उनका काम नहीं कर दिया। किसी पेंटर को पेंटिंग कराने दिया, एडवांस दे दिया और आया नहीं। कभी प्लम्बर का घर का काम कराना था, प्लम्बिंग का, वो साला, तो ही हैज, दे हैव दैट काइंड ऑफ बिलीफ। तो मेरा भी ऐसा पहले एक बिलीफ था। तो दीज आर सम काइंड ऑफ मेंटल ब्लॉक्स व्हिच फॉर्म्स थ्रू एक्सपीरियंस। तो फॉर एग्जांपल देयर वाज अनदर ब्लॉक इन माय माइंड, इट वाज रिगार्डेड विद माय हाइट, बिकॉज मैं ऑलरेडी 37 लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका हूँ हाइट के लिए। एंड आई लाइक, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई उसको कि इतने लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया हाइट के लिए। और फिर होता ही ये था गेम में, कि अगर गेम में मेरा गेम अच्छा भी है, सब कुछ अच्छा चल भी रहा है, मेरे दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड एक ऐसा सीन आता था, यार वो सब तो ठीक है, सब कुछ परफेक्ट ही था, लेकिन मेरा हाइट नहीं है ना। ये आता था। किसी के लिए वो लुक्स हो सकता है, किसी के लिए उसकी सोशल मेंटल कंडीशनिंग हो सकती है। एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो मैं वो बोल रहा था, यार वो पता है मेरा सब गेम में सही होता है, लेकिन मेरे अंदर एक डायलॉग होता है कि सूनर और लेटर वो फिगर आउट कर लेगी मेरे को, और उसके बाद में, उसके बाद में है ना, थिंग्स डोंट वर्क। हाँ ब्रो, बिकॉज यू हैव मेड दैट बिलीव सो मच इनसाइड यू, एंड देयर आर सर्टन थिंग्स
that you have already got so much attached to all those previous things. एक पर्सन था जो उसके एक्स के बारे में बात किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, एंड मैं बोला ब्रो यू हैव टू लेट गो हर। समझा समझा के थक गया उसको, सुन ही नहीं रहा है मेरी बात, अटका पड़ा है उसमें। मैं बोला ब्रो तेरा कुछ नहीं हो सकता। लास्ट आई गिव्ड अप एंड लाइक ब्रो तेरा लिटरली तू लिख ले, तेरा कुछ नहीं हो सकता जब तक तू उसको छोड़ेगा नहीं। नहीं ब्रो मेरे को गेम करना है, मेरे को सीखना है, लेकिन मेरे को उसको छोड़ना नहीं है, मेरे को उसको दिखाना है। मतलब ब्रो फर्स्ट यू हैव टू लेट गो। द सेम अप्लाइज। इफ इफ इट इज फिल्ड विथ ऑल डर्ट, no matter how much you try to pour somewhere from outside, it is not going to work। कितना भी पानी डाल लो, कितना भी पानी डाल लो, अगर ये भरा है तो ये ग्लास ऊपर से नीचे पानी ही गिरेगा इसके, अभी भर नहीं सकता ज्यादा। तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज पहले तो आपको आपका जो ग्लास है वो खाली करना पड़ेगा। तब जाके तब जाके आपके अफर्मेशंस, आपके विजुअलाइजेशंस, आपका माइंडसेट, आपके बिलीफ फिल्टर, ये सब काम करेंगे। सो इट्स नॉट अबाउट द कंडीशनिंग योर माइंड, इट्स अबाउट द अटैचमेंट्स दैट जो इस पे पकड़ के बैठ गए, ऐसे खींच के बैठ गए। सो फॉर एग्जाम्पल माई अटैचमेंट वॉज एक्सट्रीमली डार्क। मेरे को ऐसा लगता था, क्योंकि एक लड़की थी लाइक इन माई कॉलेज, नॉट इन माई कॉलेज बट इन माई 11th 12th। तो शी वॉज वेरी टॉल एंड आई वॉज वेरी शॉर्ट, सो शी सेड कि यू नो राज आई रियली लाइक यू बट तुम्हारा और हमारा हाइट क्या है। एंड लेटर ऑन आई फिगर आउट शी स्टार्टेड, फिर हर फ्रेंड स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी। वो एक चीज इंसिडेंट बहुत चिपक गया था मेरे माइंड को। फिर मेरे एक स्कूल में एक लड़की थी, यू नो वी गेट अटैच टू दोस थिंग्स सो बैडली कि अगर कोई टॉल लड़की आ रही है ना तो अचानक से वो वायरिंग्स किक हो रही। ऑफ कोर्स फॉर मी लुक्स वाजंट द थिंग बिकॉज पता नहीं मेरे को बहुत लड़कियों ने बोला है यू लुक वेरी हैंडसम पता नहीं क्यों बट ऑफ कोर्स मैं बिलीव भी करता हूँ, मुझे काफी ये मिलते हैं, यू नो। ये एक चीजें होती है। ऐसे तुम्हारे लिए बहुत सारी अलग चीजें होती है, फैमिली कंडीशनिंग हो सकती है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, वो क्लब में गया था। क्लब में गया था तो उसका ऐसा हो गया, वो एकदम नर्वस हो गया, इधर उधर देख रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ही वैसी होती है कि ये कहाँ आ गया मैं, और वो कंप्लेन किए जा रहा है मेरे को कि यार किधर लेके आ गया, मेरे को ये सब नहीं करना है। ये सब वो मैंने बोला ब्रो दिस इज ऑल योर कंडीशनिंग, हु सेड दैट द पीपल हु एंजॉय, पीपल हु डांस, पीपल हु लिव देयर लाइफ आर स्क्रूड अप एंड फक अप पीपल। इज इट रियली नेसेसरी? नहीं यार अच्छी लड़कियां क्लब नहीं जाती है। मैंने बोला ब्रो आई स्टडीड इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड ट्रस्ट मी, ऑल द गर्ल्स इन माय कॉलेज वर यूज्ड टू गो टू द क्लब्स। दिस इज ऑल मेंटल कंडीशनिंग। थैंक यू भाई। वो आ गए भाई, बोल रहे हैं हैंडसम हो भाई, थैंक यू भाई so a lot of time people don't have the things that they are able to receive something। So I met this guy Pradeep Pawar and he said, तो मैंने काफी एनालाइज किया उन बातों पे और मैंने फिगर आउट किया कि यार मे बी दिस गाय इज मेकिंग सेंस। आई हैव बिकम सो मच अटैच टू माय ओल्ड प्रीवियस थिंग। और जब तक मैं वो चीजें मुझे कुछ चीजें सीखने के लिए कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा, जब तक मैं उन चीजों को छोड़ूंगा नहीं। तो he taught me an example, a wonderful technique that was related with EFT। EFT is emotional feeding technique। तो मैंने इनसे सीखा। दिस इज नॉट समथिंग व्हाट आई हैव इन्वेंटेड, बट अब चीज ये हो इंटरेस्टिंग ये थी कि इट वाज नॉट रिलेटेड विद सेक्सुअलिटी, डेटिंग एंड रिलेशनशिप, इट वाज ओनली रिलेटेड विद मनी। सो दिस इज द समथिंग ऑफ कॉल्ड प्रोटोकॉल शिट। तो ये सब कुछ था खालील कारणांमुळे मला पैशाच्या स्तरावर मतलब फियर और कुछ ऐसे इमोशंस के ऊपर बात होती। तो मैंने सोचा यार अगर ये इसमें होता है तो व्हाई नॉट स्टडी टू मच इन डिटेल एंड व्हाई नॉट गेट समथिंग वेरी बिग। पैसे का तो इशू है ही नहीं भाई मुझे, मेरे आपके पास में इतना है, कुछ ना भी करूंगा। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम ब्लेस्ड कि घर से अच्छा बैकअप है। एंड आई एम ट्रूली बिलीव दैट भगवान ने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है पेरेंट्स। माय पेरेंट्स नो एवरीथिंग अबाउट मी, क्या करता है क्या नहीं करता है, डेटिंग वेकिंग, पिकअप पिकअप, कोल्ड अप्रोच, एवरीथिंग एवरीथिंग। एंड पैसे भी कभी इशू नहीं रहा है, तो आई डिडंट हैव मनी ब्लॉक्स एंड द वर्कशॉप वाज रिलेटेड ओनली विद मनी ब्लॉक्स। तो मैं सोचा यार ये
भले ही आपने पैसे की काम की चीज नहीं है, पर दूसरे दूसरे कुछ ब्लॉक्स अपने बहुत गहरे हैं। डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स। तुम्हारा पैसे का तो कोई इशू है नहीं भाई अपना। पर अपने को दूसरे लेवल पे बहुत खतरनाक ब्लॉक है, वी आर वुंडेड चाइल्ड। So I was like, let me study something about EFT. So these were the story of like my mental blocks, my mental issues, and this is the person, Gary Craig. He discovered EFT. Actually, the EFT is not also discovered by this. So it is. So he was like a acupuncture therapist something, and he used to acupressure points वगैरह दबा देते थे। तो हवाईयन चाइनीज टेक्निक्स है ये सब। तो उसमें वो पिन करते हैं। एंड व्हाट दे बिलीव ना, इमोशंस बॉडी में स्टोर होते हैं और उसके कुछ मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। वी विल टॉक लॉट लॉट दिस ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, वेयर टू टैप, विच इमोशंस टू रिलीज, हाउ दिस। बट आई एम जस्ट समिंग अबाउट व्हाट दिस इज। तो दिस इज अ पर्सन, ही इन्वेंटेड दिस, एंड दिस इज चाइनीज टाइप ऑफ थेरेपी दैट द पीपल यूज टू डू। दे यूज टू टैप लॉट ऑन द डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। तो एक एक जगह पे उन्होंने एक ऐसा किया था कि काफी एक साइकेट्रिस्ट और अलग अलग लेवल के पागल लोग थे। तो अभी उनको तो कुछ करा नहीं सकते, तो उनको बस बांध उनके। और सबको है ना कुछ ऐसे जिंदगी में उनके इंसिडेंट हुए थे कि वो पागल बन गए। किसी की वाइफ ने चीट किया, किसी के घर पे मर्डर हो गया, किसी के साथ में रेप हो गया, ऐसे कुछ तो भी वियर्ड चीजें हुई थी उनके साथ में, और जिसकी वजह से वो पागल बने। अब वो जब तक वो चीजें लेट गो नहीं करेंगे, तब तक वो नॉर्मल नहीं होगी। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था यूएस के जेल में। उसका एक रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर मैं सेंड कर दूंगा आपको। जस्ट रिमाइंड मी इन केस इफ आई फॉरगेट। तो उन्होंने बोला अभी ये तो खुद टैप नहीं करेंगे, तो इनको इनके पॉइंट्स पे हम खुद ही टैप करेंगे और उनको वो चीजें बार बार सुनाएंगे। और उनके वो 5 इमोशंस वो जब लेट गो होंगे, जब वो खाली हो जाएंगे पूरे, तब फिर उनको चीजें सिखाएंगे। क्योंकि जब तक अगर वो पागल है तब तक वो सीखेंगे ही नहीं। और उसके ऊपर पूरा रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ा मैंने बोला यार, दिस इज समथिंग आई नीड टू एक्सप्लोर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑलरेडी तो मैं कर ही रहा हूँ मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स, गोइंग टू अटेंडिंग ईच और एवरी वर्कशॉप। तो दिस वर सम पीपल जिन्होंने उन सब चीजों के ऊपर बिलीव किया। और मैं ऐसा पर्सन हूँ भाई, मैं एक दो वर्कशॉप देख के, 4-5 किताबें पढ़ के, 8-10 वीडियो देख के मैं कन्विंस नहीं होता हूँ। मैं बहुत लॉजिकल, फैक्चुअल और इंटेलेक्चुअल पर्सन हूँ। जब तक मेरे को पूरा कन्विक्शन ना हो और उसके पीछे का साइंटिफिक एविडेंस ना समझे, मैं उन चीजों में यकीन ही नहीं करता। नहीं तो वो अंधविश्वास बन के रह जाता है कुछ तो आई थॉट मे बी टॉनी रॉबिन्स ने बात की थी अनलिमिटेड पावर में ईएफटी के ऊपर, तो उसका एक वीडियो वगैरह देखा था मैंने ईएफटी का। फिर लुइस हे ने काफी बात की थी, लुइस हे के वर्क यू कैन हील योर लाइफ का तुम बुक भी पढ़ सकते हो, बुक इज वेरी गुड। एंड उसके अलावा तुम उसका एक 1.5 2 घंटे का एक पूरा वीडियो है, वो देख सकते हो। देन दिस इज समथिंग दीपक चोपड़ा, इसने भी काफी बात किया है। हाँ, एंड व्हाट आई वांट यू टू वॉच द वीडियो द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बाय ब्रूस लिप्टन। He is a scientist, and he is a biologist, he is a doctor, and he says the people who are in science really literally has no clues how the beliefs work. That will give you the entire representation। 2.5 3 घंटे का वीडियो है, मस्ट वॉच। कुछ नहीं किया जिंदगी में तो चलेगा, लेकिन अगर ये आपने देख लिया तो यू विल गेट अ फिक्सेड आइडिया लाइक हाउ द बिलीव्स आर, और बिलीव्स कैसे फॉर्म होते हैं, एक्सपीरियंस कैसे फॉर्म होते हैं। द वीडियो इज वेरी लेंथी, 2.5 3 घंटे का वीडियो है, लेकिन वो देखो क्योंकि वो पुराना वीडियो है बहुत। एंड हियर एक्सप्लेन ऑल द टेक्निकल टर्म्स, हाउ दैट शेप्स इंसिडेंट्स कैसे होते हैं लाइफ में, वो डीएनए में कैसे होते हैं, डीएनए कैसे इम्पैक्ट होता है, क्यों कुछ लोगों को चीजें ऐसे मिलती है, क्यों कुछ बिलीव्स ही चेंज नहीं होते हैं कितना भी काम करो। दिस इज वन समथिंग व्हाट ब्रूस लिप्टन, उसकी किताब भी पढ़ सकते हो, लेकिन किताब इज बोरिंग, तो वीडियो इज अमेजिंग। काफी बोरिंग लगेगा तुमको थोड़ी देर के लिए, यू कैन टाइप द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। हाँ, आशु ने भाई वीडियो डाल दिया है, थैंक यू आशु। ये वही वीडियो है ना भाई, नहीं तो ऐसा हो जाएगा तुमको कुछ और डाल दिया। थैंक यू ब्रो। तो दिस इज समथिंग वीडियो, लेट मी चेक। हाँ, यही वीडियो है गाइस, यू कैन सी द स्क्रीन। Imagine this on a यार resume. क्या A ऐड कर certified रहे हो? Expert in ChatGPT and दिस इज समथिंग अ वीडियो। मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, तो दिस इज द गाय, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। In the universe, if
कितना वो But 2.5 when I घंटे का put वीडियो है शायद। field in, the field shapes matter. And the significant ये काफी छोटा वाला डाला है आशु ने, बट वो काफी बड़ा है। जो मैंने देखा था वो बहुत बड़ा वीडियो, वो देखना। फिर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड दिस पर्सन जो डिस्पेंसा। दिस इज हिज बुक बिकमिंग अ सुपरनैचुरल। अमेजिंग बुक ब्रो। भले ही वो गेम गेम के हिसाब से नहीं है, बट इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट द इनर गेम इज ना, आई वुड सजेस्ट, अगर आप गेम में हो, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर डेटिंग लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ एंड अदर थिंग्स, read this book. And don't read the book from belief perspective. Read the book only from the game perspective. And like a lot of people ask which game books you should read, I would say, bro, there are certain books that you must definitely read. It will help you a lot to the next level. The name is Dr. Joe Dispenza. Amazing person. This person, you can see मेरा cursor घूम रहा है यहाँ पे। तो ही टॉक्स लॉट अबाउट द बिलीफ फैक्टर, और इसके मैंने काफी वर्कशॉप्स वगैरह भी किए ऑनलाइन। एंड दिस इज समथिंग, इसका मैंने ये किया था। एंड देयर आर सर्टेन अदर पीपल जिनसे मैंने सीखा। दिस वाज प्रदीप पवार, मिनल मैम, इन दोनों का मैंने वर्कशॉप किया था। द प्राइसिंग वाज लाइक अराउंड 50,000, लाइक 6 मंथ्स का प्रोग्राम था। ये रोहिणी सिंह से सीखा, सोनल वाधवा, एंड राइट नाउ आई एम लर्निंग एफटी फ्रॉम मितेश खत्री। So he is very good. His law of attraction one of the best coaches in India, and काफी राइज हो गए। तो मैंने ऑलमोस्ट अभी कम से कम उनके 28 पॉडकास्ट निकाले। उस 28 पॉडकास्ट में मैंने अब तक कम से कम 6 या 7 सुने हैं। सो आई डोंट कंज्यूम द शॉर्ट कंटेंट। शॉर्ट कंटेंट आई बिलीव इट्स वेरी डेंजरस एंड वेरी हैजर्डस, एंड इट कैन लीड यू टू बिग इश्यूज इन लाइफ। आपका ऑनलाइन, मतलब आपका मेंटली आपको स्क्रू अप करती है। हमेशा लॉन्ग कंटेंट, आई ऑलवेज कंज्यूम द लॉन्ग कंटेंट। और चाहे कितना भी टाइम लग जाए, जब तक मैं वो पूरा कंटेंट खत्म ना करूं, तो आई डोंट वॉच शॉर्टर वन। इट रियली सक्स। तो नाउ हाउ डू यू चेंज द बिलीफ? सो देर आर सर्टन प्रोसेसेस। फर्स्ट, देर आर सर्टन स्टेप्स। वन इज अवेयरनेस, एक्सेप्ट, टैप। उसको टैप करो, उसको हिलाओ। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी ये यहाँ पे गमला है और समझो इसके अंदर बहुत मिट्टी है। अभी अगर मुझे उसके जड़ में जाके कुछ तो भी सुधार करनी है, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा जमीन के किस हिस्से में प्रॉब्लम है। पहले तो मुझे अवेयर होना पड़ेगा उसमें प्रॉब्लम है। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर नेगेटिव बिलीव्स, देन देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो पहले तो अवेयर होना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। पहले फिर उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है। लॉट ऑफ पीपल कम इनटू द गेम ना, दे डोंट एक्सेप्ट। इट्स लाइक ईगो बना लेते हैं गेम का। बाहर बाहर से बहुत ये बना लेते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट दे आर रॉन्ग, दे हैव समथिंग प्रॉब्लम विद देम। Everyone do has. No one is 100% sorted in life. अगर आप sorted होते थे लाइफ में, तो आप पहली बात तो गेम में ही नहीं होते थे। You know the most sorted people who are in game, who are in pickup. Bro, why the hell they will be in game? Also, why the hell? And there was another person. I don't want to take the name, but वो कह रहा था कि ब्रो, आई थिंक व्हाट डू यू बिलीव अबाउट दिस कोच, दैट समथिंग। तो मुझे बोला, मेरे को क्यों बता रहा है भाई? तो उसने कहा कि ब्रो, हिज हु सेज दैट हिज इनर गेम इज फिक्स। मैंने बोला ब्रो, एक बात बता, अगर उसका इनर गेम फिक्स होता था, इतना 100% सॉर्ट होता था वो, जैसे तू बता रहा है, क्योंकि वो काफी बड़ा चढ़ा के बता रहा था, जिस जैसा उसने बताया उससे भी ज्यादा बता। तो मैंने बोला ब्रो, वो प्रोग्राम क्यों बेचता था आपने? दैट सिंपल ना, वो बिजनेस क्यों करता था? वो तो एनलाइटेंड होके बैठ गया रहता था कहीं। नो वन इज सॉर्टेड। आई एम नॉट सेइंग गेट डेटिंग गुड विद रेटिंग, यू हैव टू बी emotionally sorted. You just have to be stable, you just have to be aware, you just have to change certain things. And this is certain kind of process. First you have to be aware what's wrong inside you, then you have to accept that, then you have to tap. Once you let go and release, then you can change and conditioning. And these are process. Then you install a new thought with lot of visualization, NLP, hypnotherapy. All those things only work अगर आपका ग्लास खाली है। तो आपका ग्लास ही खाली नहीं है तो वो वर्क नहीं करता है। आप जिम में जाते हो, आपकी ऑलरेडी इंजरी है, और उसमें आप डेविड वॉकिंस जैसे लगे पड़े हो, इट वोंट वर्क, बिकॉज द जेनेटिक्स एंड अदर थिंग्स प्लेज अ ह्यूज रोल।
और फिर इंस्टॉलेशन, और फिर वो धीरे धीरे कन्विक्शन आके वो बिलीव बनेगा, उसके सिवा नहीं बनेगा। नाउ दीज आर सम कॉमन क्वेश्चंस रिलेटेड विद ईएफटी। व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ईएफटी इमोशनल, व्हाट आर द साइंटिफिक थ्योरीज, एविडेंस टू सपोर्ट द एफिशिएंसी। उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। देर आर लाइक अराउंड 10,000 ऑफ थिंग। ऐसे हमारे बॉडी में अलग अलग नोड्स बनते हैं। सो यू नो, सर्टन पीपल हैव डू सर्टन सर्टन ब्लॉक इन सर्टन सर्टन बॉडी पार्ट्स। तो फॉर एग्जाम्पल, एक कोच था, वो बोलते थे मेरे कान लाल होते थे। एक पर्सन था, स्टूडेंट था, उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। मेरा ऐसा हो जाता था कि मेरे गले में कुछ तो भी होने लगता था, और चेस्ट में ऐसा दब 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 होने लगता था। एक किसी किसी का कुछ होने लगता है, किसी किसी का कुछ होने लगता है। तो देर इज सर्टन ब्लॉक इनसाइड द बॉडी। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, रीड द बुक टिच नैथ हैन, इनर चाइल्ड हीलिंग बाय टिच नैथ हैन। तो उनका ऐसा होता था, वेरी गुड एग्जांपल ही हैज गिवन इन दिस बुक, कि उनके फादर ने उनको बचपन में एक बहुत गंदा मारा था पेट पे। ऐसे वो गिर गए और पेट पे मारे ही मारे जा रहे हैं, और उनको एडमिट वगैरह करना पड़ा। तो वो बोलते हैं कि वो इंसिडेंट भले ही बचपन में हुआ, लेकिन मेरे लाइफ में जब जब मुझे एंजाइटी आता था, फियर आता था, कुछ तो भी होता था, तो मेरे पेट में कैसे तो भी होने लगता था। तो what I understood from my body is there are certain sanskaras that has remained and that is creating the issues inside. And Vipassana, the guys who have done Vipassana, they know it very well. From Vipassana on the date 4th, they teach you the Vipassana technique. After 3 days of Anapan, they teach you Vipassana, that is observing the sensation from head to feet and from feet to head. और जब पूरा मन तुम्हारा पूरा सिर से लेके पाँव तक एकदम स्मूथली निकलता है विदाउट एनी, so that means that you have cleared all those sanskaras. It's a long and lot of technical topic, but I don't want to bore you. So coming back to topic, there's certain blocks remain in the body. When you tap, there are 11 meridian points in your body. Once you tap those meridian points, you inner child healing. Someone is asking what is the name of author. Inner child, the name of the book is Inner Child Healing by Thich Nhat Hanh. I'll show you the name of the uh, Inner Child Healing by Thich Nhat Hanh. Just let me type Inner Child Healing by Thich Nhat Hanh. अरे यार, हाँ हाँ, यही है, रिकाउंसिलेशन इनर चाइल्ड हीलिंग, आशुतोष ने लिखा है, रिकाउंसिलेशन इनर चाइल्ड हीलिंग। दिस इज समथिंग, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। इट्स अ वंडरफुल थिंग इफ यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ इश्यूज। अभी कुछ लोगों को एंजाइटी की टैबलेट्स लेनी पड़ती है। वन ऑफ द पर्सन इज लाइक, ब्रो अगर मैं एंजाइटी की टैबलेट्स ना लूँ तो मुझे अटैक आने लग जाएगी, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं रात को। तो उनका ऐसा होता है कि उनका पल्स रेट वगैरह, आई एम नॉट अ थेरापिस्ट, आई एम नॉट अ काउंसलर, आई एम नॉट अ, वो बहुत साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ को फीट आने लगती है कुछ कुछ लोगों को। एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको मैं और पुश करूंगा ना तो उसको अटैक आके गिर जाएगा, उसके आंखें सफेद हो जाती। तो I don't understand, like, it's, and for some people now, some people are so quick fix, like you say zoop, they will go and zoop and do it. Now, can you explain these are all scientific evidence and scientific theories to back up with what I have learned. Now, can you explain the mechanics of how EFT function addresses emotional and psychological issue and mechanism within the body and mind are involved in its effectiveness? So these are 8 meridian points. When you tap through 8 meridian point, yeah, I think the 8 to 11 meridian points. Once you tap through it now, and once you recite those statements, so that those statements we will talk a lot in detail because those statements subjective होते हैं। मैंने सब गेम के हिसाब से statements बनाए, and I will show you all the statements. Lot of the statements are very common. Like I have noted like around 50 to 60 statement जो सबके common होते हैं। And when you tap ना, you let go of those negative conditioning जो belief already बन चुका है। So for example, if my belief was even though I am short, I still accept myself, ऐसे कुछ statements होते हैं। तो short tapping होती है, long tapping होती है, और mid tapping भी होती है। उसमें बहुत सारे फर्क होते हैं। In what way can men expect EFT to positive impact their emotional well-being and overall mental health? What contribution to its personalized effectiveness of different people? See now, अब मैंने ये वर्कशॉप किया था। लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये वर्कशॉप किया था, व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग रिजल्ट। मैंने 6 महीना किया और मैंने कंटिन्यूस प्रैक्टिस वगैरह की। व्हाट डू यू थिंक आई गॉट द रिजल्ट? नो। मेरी एकदम से कंडीशन चेंज नहीं हुई। मेरी वो ईएफटी करने के बाद में कुछ टाइम बाद में, जब
काफी समय बीत गया, उसके बाद में कंडीशनिंग ठीक हो गई। मेरा एक रिश्तेदार था, हिज नेम इज सचिन, और वो मेरे को कोइंसिडेंटली उस वर्कशॉप में मिला। तो वो काफी सालों से ईएफटी प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो तो उस पर्सन को भगवान ही मानता है। तो उसने मुझे बताया था कि यार मैं तो सर का फोटो लेके घूमता हूँ जेब में वगैरह, ऐसा ऐसा। और वो बहुत खुश हो गया, भाई मैं बहुत खुश हो गया तेरे को देख के, ऐसा ऐसा ये वो। तो उसने मेरी मम्मी को फोन लगाया, वहां पे ऐसा ऐसा है, मुझे बहुत खुशी हुई, ये तुम्हारा लड़का इधर आया। तो उसने उसको बताया कि ऐसे ऐसे केसेस देखे जहाँ पे कैंसर ठीक नहीं हो रहा था, हो गया। जहाँ पे ऐसा ऐसा, अब मैंने बोला यार मुझे तो ऐसा कोई फर्क नहीं गिरा, मैंने 6 महीना किया, मुझे 1 या 1.5 साल के बाद में डिफरेंस नजर आया। सो इट डिपेंड्स, किसी किसी को टाइम लगता है, किसी किसी का जल्दी होता है, किसी किसी को इंस्टेंट रिजल्ट दिखने लगता है। इट ऑल डिपेंड्स, बट ऑफकोर्स इट वर्क्स 100%। It works 100%. That's what I feel. I'm not claiming that it is 100% because different practices works for different people. After all, you have to figure it out. But of course, now this is something, there's a wonderful book by T. Harvicker. The name of the book is The Secrets of Millionaire Mind. And I will share you one example of the book. तो उस किताब में क्या था ना, if you know, द बुक इज अबाउट द मनी। तो वो क्या कहता है कि आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ बिजनेस, द सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड बाय टी हार्वेकर, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एंड मोस्ट रिकमेंडेड बुक। You can read the book from the perspective of money, but you can read it from from the game point of view also very well. And he talks about the leakages. तो वो कहता है कि मैंने काफी बिजनेस वगैरह स्टार्ट किए, बिजनेस वगैरह स्टार्ट होते थे, कुछ वक्त तक चलते थे और फिर से फेल होते थे। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर के कुछ बिलीव्स वैल्यूज जो है, उसमें अभी भी कुछ तरह के वियर्ड ब्लॉक्स है, वियर्ड इश्यूज है। मेरी जो इनर ब्लूप्रिंट है वो ठीक नहीं हुई। एंड ही गिव्स यू एग्जांपल। तो उसमें अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज है, ओके, दिस इज माय डेली रिचुअल पेज। अभी ये मैंने टाइप किया, इसमें मिस्टेक है, और मैंने इसको पेन से एडिट किया, मैंने प्रिंट दिया, फिर से मैंने दूसरा पेज आया, फिर से उसमें मिस्टेक है, फिर से मैंने कट किया यहाँ पे, फिर से मैंने प्रिंट दिया, फिर से वही मिस्टेक है, फिर से मैंने पेन से एडिट किया। नाउ गाइस, यूज योर कॉमन सेंस, प्रॉब्लम कहाँ पे है? जस्ट टेल मी वेयर इज द प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने 7-8 बार वो पन्ने को पेन से एडिट कर लिया, लेकिन जब भी मैं प्रिंट दे रहा हूं तो सेम मिस्टेक आ रही। कैन एनी वन टेल वेयर द एक्चुअल प्रॉब्लम इज? रूट, ऑफ कोर्स, द रूट, द प्रॉब्लम इज इन द ब्लूप्रिंट। उस ब्लूप्रिंट में ही प्रॉब्लम है। तो अगर आपके, तो वो कहता है कि मेरे तो ब्लूप्रिंट में ही प्रॉब्लम था, इसलिए मैं जो भी बिजनेस करता था स्टार्टिंग में चलता था, फिर वर्क नहीं करता था। मेरे साथ में गेम में और पिकअप में ऐसा होता था कि मैं गेम कर रहा हूँ, मैं जब तक बाहर जा रहा हूँ तब तक मैं कर रहा हूँ, तब तक मुझे कुछ लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। लेकिन सडनली अगर ऐसा कुछ हो गया लाइफ में आड़ा टेढ़ा, और कुछ शिट चल गया मेरे लाइफ में, और 8, 10, 15 दिन का गैप गिर गया, या फिर मैं, तो ऐसा मेरे को लगता है कि यार मैं तो फिर से जीरो हो गया, मेरे को फिर से ये हो गया। अरे ये क्या उससे हैंड पंप है क्या? पानी निकालने के लिए तुमको मारते रहना पड़ेगा, मारते रहना पड़ेगा, तो बिलीव कब चेंज हो गए? तो ऐसा मेरा वो आने लग गया। बिकॉज इवन दो आई वॉज वर्किंग ऑन द आउटर थिंग, माई ब्लू प्रिंट, माई इनसाइड was totally screwed up. And that's how the inner world, your inner reality plays a role. So I was thinking यार इसके ऊपर तो अभी तो मेरे को काम करना ही पड़ेगा। So this is something you can read his book, The Secrets of Millionaire Mind by T. Harvicker. And he says your outer world is the reflection of your inner world. वैसे तो टी हार्वेगर ने भी कहा है, ब्रेन ट्रेसी ने भी कहा है, बॉब प्रॉक्टर ने भी कहा है, रोंडा बैरन ने भी कहा है, टॉनी रॉबिन्स ने भी कहा है, एंड दिस इज अ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल कंसेप्ट। और हमारे शास्त्र वास्त्रों में, गीता वीता में भी लिखा है। बट
if you don't fix that inside, because after all, what is coming in the outer reality is all about your inner thing. And if your blueprint is damaged, working on the outside will give you results. But if inside, and trust me, you don't attract who you want, you attract who you are. And this is something about द बुक, पावर वर्सेस फोर्स. तो उस टाइम पे हम वो वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करते थे, जूलियन के आते थे, RSD जूलियन के. आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ वर्कशॉप, लाइक मास्टरी कुछ तो भी था यार, अच्छा कोर्स था उसका. वो साला इनर गेम पे कोर्स था. तो मैं वो और वो एक डायग्राम बताता है, तो दिस इज फ्रॉम द बुक द पावर वर्सेस फोर्स. तो कुछ होते हैं नेगेटिव इमोशंस. ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी बाय जूलियन, या ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी बाय जूलियन. तो मैंने वर्कशॉप वगैरह देखा था उस टाइम पे, तो काफी कंटेंट कंज्यूम करता था, अभी तो नहीं करता हूँ. तो वो देखा, और ऐसे अलग अलग इमोशंस के बारे में वो बात करते हैं. तो ये जो कंसेप्ट है ये इस किताब में से, और ही इज अ वेरी एक्सट्रीम लेवल ऑफ वन ऑफ द साइंटिस्ट एंड वन ऑफ द स्पिरिचुअल. इसके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी, और ये बिलीव्स को अच्छी तरह समझता है फ्रॉम अ साइंटिफिक परस्पेक्टिव. This is David Hawkins. You can follow a lot of content is there, lot of his research papers are there. His research papers are really good. तो ये बोलते हैं कि लोअर लेवल ऑफ इमोशंस किस तरह के होते हैं. तो ऐसी ऐसी एक ये होती है, शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर. अगर मैं इन चीजों से बहुत अंदर से भरा हूं और मेरे अंदर वो चीजें ही नहीं है, तो मेरी चीज कैसे रहेगी. मतलब द द गेम इज ऑल अबाउट वाइब. If you are really screwed up vibe na, of course techniques and other things and your verbals, they do play a role. But अगर आपकी वाइब ठीक नहीं है ना, लाइक पीपल कम टू मी. लाइक मेरे कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं, ब्रो मैंने तूने जो जो सिखाया था वो सब डाला, मैंने सब कुछ परफेक्ट किया. यू कांट इमेजिन कितना परफेक्ट किया. मैं बाथरूम में जाके चेक कर रहा था, राज भाई ने ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था, और लड़की बाहर बैठी थी, फिर मैंने लिखाया, कहीं मिस्टेक नहीं हुई. भाई ऐसा कैसे हो गया. ब्रो, तू मेंटली सोच पा रहा है तू कितना स्क्रू अप है. मतलब तू सोच रहा है, तो लड़की के साथ में बैठा है वहां पे, तेरे को इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप को. नहीं नहीं ब्रो, बट मैंने सब सही किया ना, मैं गलत कहाँ गया. मतलब तेरा प्रॉब्लम तेरे बिलीफ सिस्टम में है, तूने पुरानी चीजें ही छोड़ी नहीं है. उसके अंदर वो उतना भरा पड़ा है कि नाउ इफ इज ट्राइंग टू वर्क ऑन इट ना, इज लाइक, एंड इट ऑल कम्स बैक टू. और तो बोला तेरा वाई भी ऐसा आ रहा है, नो मैटर हाउ मच टेक्निक्स यू ट्राई ना, इफ योर वाइब इज डेड, द परफेक्ट थिंग ऑल्सो वोंट वर्क. और इसलिए वो वर्क नहीं किया, क्योंकि मेरे को सुन के बड़ा अजीब लग रहा है यार. वो सामने तो ऑलरेडी बंदी टेबल पे बैठी है, उसको कितना गंदा और वियर्ड लग रहा होगा, क्या हो गया इसको. आई विल टेल यू वन जोक. एक बार है ना, एक पर्सन एक पर्सन है ना, एक कपल थेरेपिस्ट के पास में जाता है. सॉरी, एक हस्बैंड है ना, थेरेपिस्ट के पास में जाता है, क्योंकि उनकी शादी में काफी बोर्डम हो जाता है और सेक्स बिकम्स मैकेनिकल. तो वो उसको एक मंत्रा देता है. वो मंत्रा देता है, और जब भी वो हस्बैंड एंड वाइफ सेक्स करते हैं, वो वाइफ को बोलता है, 1 मिनट, 5 मिनट रुक, मेरे को वॉशरूम जाने दे. और लगा लेता है. और वाइफ सोचती है, रोज रोज क्या है इसका. इवन द सेक्स इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ बढ़िया है, ये क्यों एकदम ऐसे बीच में से ब्रेक ले लेता है एकदम, और फटाक से बाथरूम जाता है. फिर एक दिन है ना, वो जाके जाके देखती है, तो उसका वाइफ और उसका जो हस्बैंड है वो आईने के सामने बोलता है, और एक मंत्र रिसाइट करता है जो उसको उसको थेरेपिस्ट ने दिया है. शी इज नॉट माई वाइफ, शी इज नॉट माई वाइफ, शी इज नॉट माई वाइफ, शी इज नॉट माई वाइफ. तो इसलिए रोमांस उस पार के रहेगा. तो लाइक दिस थिंग, ऐसी चीजें, टेक्निकल वर्बल्स, ऑल दोस थिंग्स आर गुड, बट यू नीड टू एट सम पॉइंट fix the certain things. If you are too much holding on these things, if you have too much on these things, then it will become a problem. And these are lower level of emotion. Consumption of too much of hatred, guilt, shame, this will lead. And after all, it comes to all four things only. The whole inner game runs on four things. Just all. ये सॉल्ट है तो बाकी सब सॉल्ट है, ये फकअप है, तो भाई आपका लाइफ आपको गेम ही पेन दे देगा आएगा. एंड दिस फोर थिंग्स आर सिंपल.
योर इमेज, योर सेल्फ इमेज, योर सेल्फ लव। सेल्फ लव ये नहीं है कि आईने में आके बोलते रहो आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। दैट्स नॉट सेल्फ लव। सेल्फ वर्थ, कि आप अपने आप को कितना वर्दी मानते हो। और सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज लाइक you are already accepted the situation. Sometime in the game when we work, we don't accept the situation ideally, we take everything on our self esteem. So, and this all falls in one entire inner game is on the aspects of these all four things. But in this particular thing we will only talk about self acceptance. Kyunki if you don't know what the problem is, it's difficult to find it out. Then you have to accept that there is a certain problem. पहले तो अवेयर हो जाओ कि प्रॉब्लम क्या है। अब अवेयर होने के बाद में उसको एक्सेप्ट भी करो। जो एक्सेप्ट ही नहीं करता ना तो उसको प्रॉब्लम है। लेट गो और रिलीज, उसको निकालना, वो तो बात की प्रॉब्लम, वो तो बहुत बात बात की बात है। एंड नंबर वन थिंग इज ना, यू हैव टू अवेयर, यू हैव एक्सेप्ट, रिलीज एंड लेट गो। एंड इफ यू एंड द फीलिंग इज वन एंड द सेम। एक बहुत बढ़िया सीन बताता हूँ तुमको। वो पता है बंदर कैसे पकड़ते हैं? You know how the people catch monkeys? I give you show you diagram. ये होता है बंदर पकड़ने का ट्रैप। Just a minute यार। बंदर कैसे पकड़ते हैं पता है? ये ये है ना, ये उसमें ऐसा डालते हैं कुछ तो भी, मूंगफलियां वगैरह डालते हैं और उसके अंदर डालता है। तो वो ऐसा पकड़ लेता है अंदर, और वो मूंगफलियां खींचता है लेकिन उसका हाथ नहीं छूटता है। और वो बोलता है कि मेरे को हाथ तो निकालना है, लेकिन वो हाथ निकालने के लिए उसको मूंगफलियां छोड़नी पड़ी। तो ऐसा बॉटल्स, ऐसे ऐसे कुछ कंटेनर्स होते हैं, उसमें से मूंगफलियां भर के डालते हैं। वो ऐसा हाथ डालता है, इतने नोजल से मूंगफलियां पकड़ता है खींच के, और वो खींचते रहता है और वो निकलता नहीं है। अच्छा, वो निकलता नहीं है ना, तो भाई उसका एक सीन ऐसा होता है कि वो चिल्लाता है, चीखता है, और वो छोड़, हाथ निकलना बहुत आसान है। बस उसको मूंगफलियां छोड़नी है, ऐसा हाथ निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं निकालेगा। दैट्स द थिंग दैट द पीपल गेट सो मच अटैच टू द थिंग्स, द पास्ट कंडीशनिंग दैट हैज हैपेंड टू देम, and for them now it's difficult to let go. Now I will give you another my personal example when I was in game. So I did one set, date with हुई उसके साथ में, and she was a very good girl, हाई सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ वर्थ वाली लड़की थी, बहुत सही थी, सब कुछ चल रहा था। एंड शी सेड, राज आई रियली लाइक यू, बट है ना, पता नहीं तुम बीच बीच में ऐसे कुछ चीजें करते हो ना। और पता है उसने क्या बोला फिर? मुझे बोला, लगता है तुम अपने पेन से ऑलरेडी अब तक निकले नहीं हो, इट्स टाइम फॉर यू, यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। क्या वो लड़की सही बोल रही थी या झूठ बोल रही थी? कैन यू गेस? तो उसने मुझे टेबल पे बोला कि मे बी देर इज समथिंग होल्डिंग यू सो मच दैट यू नो यू डोंट सीम टू बी अ हैप्पी पर्सन। राइट, वो सही बोल रही थी, वो झूठ नहीं बोल रही थी भाई। वुमन कैन सेंस दैट। ट्रस्ट मी, अ वुमन्स गेम इज 10 times better than you, me, and all the top notch naturals and PUAs in this world. Beautiful girl doesn't need game, she has already ingrained. It comes from the evolutionary psychology, evolutionary perspective. They know already, they can sense, they can sense from your belief system, they can sense your belief system. And वैसे लाइक क्यों किए? मैं इस बंदर की तरह हूं, पता है? उस टाइम पे मैं इस बंदर की तरह था। वो रिजेक्शंस, वो पेन, वो कोल्ड अप्रोच, वो गेम, वो बूट कैंप, वो पूरा गेमी स्टफ, वो रेड पिल का कंजम्पशन, वो डार्कर ट्रूथ, वो वुमन का हाइपर गेमस नेचर, और उसके इनसाइट्स का वो लेके मैं जा रहा हूँ और लड़की का अप्रोच कर रहा हूँ। यू डोंट यू थिंक दैट इट विल वर्क? नो। एंड यू नो आई अंडरस्टूड वन थिंग, भाई अगर डेटिंग में सब कुछ भूल भी गए ना, तो एक चीज फंडामेंटल याद रखना, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट हु यू आर। आपको वो पर्सन नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वही पर्सन मिलेगा जो आप खुद है। Definitely, if you want 9 sentence, you have to be the guy who is 9 sentence. Anyone claiming that is bullshitting you. Flukes will work. You know what is fluke? Fluke मतलब होता है bro. I had a lot of time with 9 sentence, but
If you want Angelina Jolie, you have to be Brad Pitt. Any Tom, Dick, and Harry can teach you 10 to 15 canned routines and materials, and you will go and approach them. And तुक्का लग जाएगा if your game is really on tight. But at the core, that really matters because you don't attract who you want, you attract who you are. And if inside you are a very screwed up person, how many people believe literally that what I am telling is truth? हाँ नो कि ये डेफिनेशन सही में कुछ वैलिड है या नहीं. यू डोंट अट्रैक्ट हु यू वांट, यू अट्रैक्ट हु यू आर. कितने लोग इसको मानते हैं? यस, नो, समथिंग. यस. एक्चुअली ब्रो मालूम है क्या? नो, ये भी सच नहीं है. ये आधा ही सच है. इट्स नॉट ट्रू. यू डोंट अट्रैक्ट हु यू वांट, यू अट्रैक्ट हु यू आर. फिर मैंने सोचा कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, शिट और वियर्ड पर्सन भी अच्छे पर्सन को डेट करता है. उससे भी एक बड़ा एक लॉ होता है, एंड विच इज टू मच अलाइंड विद द लॉ यू आर. तो मतलब मेरे मेरे साथ में ऐसा होता था, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर. इफ यू वांट ग्रेट, यू हैव टू बिकम ग्रेट. इफ यू वांट नाइन सेंटेंस, यू हैव टू बिकम नाइन सेंटेंस. बट जब मैंने प्रदीप पवार से मिला ना और उनकी जब बातें सुनी, तो मैंने बोला यार ये भी एक इल्यूजन है. क्योंकि मुझे क्या पता क्या राइट है, क्या नाइन है, क्या टेन है. हो सकता है मैंने इधर उधर से इंफॉर्मेशन कंज्यूम करके, इसको देख के, उसको देख के, इनकी स्टोरी समझ के, उसको रिलेट करके अपने इंटरप्रिटेशन, यू रिमेम्बर वी टॉक अबाउट द इंटरप्रिटेशन अर्लियर, उससे इंटरप्रेट करके वो एक डिलीजन बना लिया. मेरा अपना एक लिमिटेशन है देखने का. तो फॉर एग्जाम्पल, एज आई ऑलवेज टेल कि अबे ये कौन है. हाँ, ऐसा ऑलवेज टेल कि जब मैं डिप्लोमा में था, वर्धा में था, तो मेरे कॉलेज में एक नेहा नाम की लड़की थी, और पूरे कॉलेज में तीन ही लड़कियां थी. तो उसमें भी एक जो थी, वही मेरे लिए नाइन सेंटेंस थी, वही मेरे लिए दुनिया थी, विश्व सुंदरी. मुझे नहीं पता भाई वही लड़की होती है, क्योंकि पूरे कॉलेज में तीन ही लड़कियां हैं और साला 600 बंदे टप्पे पड़े हैं उनके पीछे. तो उसमें की वही नाइन सेंटेंस है. फिर भी जब नागपुर गया तो मैं देखा यार 8-10 लोग हैं, और वो जो मेरे लिए नाइन सेंटेंस थी, वो तो नाइन सेंटेंस है भी नहीं. वो तो 5, 6, 7 है. पहले तो यू डोंट हैव टू लेबल एनीवन, बट दैट्स ऑल. देन आई वेंट टू MIT पुणे. वहां पे देख रहा हूँ भाई नाइन सेंटेंस तो मेरे फ्रेंड्स हैं. और देर आर लिटरली गाइस हु आर डेटिंग एंड हैविंग अमेजिंग टाइम विद देम. तो एंड जब मैं नाइट क्लब्स जाने लग गया, तो मैं वो एक फेस था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरा लिमिटेड परसेप्शन कैसे तोड़ूं. तो मैं एकदम महंगी महंगी प्रीमियम प्रीमियम जगह जाता था, सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए. लेट मी फाइंड आउट व्हाट द रियल इज, कि मेरा भी अपना लिमिटेशन है क्या नाइन सेंटेंस का. तो मैंने काफी एकदम, मैं एक 2-3 जगह तो ऐसे गए कि मैं 5 या 10 हजार रुपये स्टैक देके गया हूँ, जस्ट टू एक्सपीरियंस हाउ इज दैट. और हर बार रियलिटी टूटा है. और मैं तुमको बताऊँ अभी मेरा रियलिटी क्या है. मेरे एक कोच है, तो ही इज अ वेरी इज अ बिजनेस कोचिंग में बहुत बड़ा नाम है उनका. एंड इज अमेजिंग पर्सन, लाइक ही कम्स इन इंटरनेशनल थिंग. और वो बड़े बड़े बिजनेस कोचेस के साथ में उनका अलायंस रहता है. तो ही, यू नो, व्हेन आई वाज टॉकिंग विद हिम, ही सेड, राज, फकिंग यू डोंट नो हु द नाइन सेंटेंस आर. हाँ, क्या बात कर रहे हो, मेरे को नहीं पता. बोले नाइन सेंटेंस कहाँ है, बताया वो दुबई के किसी यॉट पे है. वो पेरिस फैशन वीक में कोई फैशन वीक की तैयारी कर रही है. वो सिलिकॉन वैली में अपने स्टार्टअप के लिए, वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है. तू कभी मिला भी नहीं होगा, कभी देखा भी नहीं होगा, क्योंकि तू दुनिया के बाहर कब निकला है. बोले तू इंडिया में ही रहा है. मिला. मे बी दिस गाइस परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज मोर देन मी. सो हाउ कैन आई डिसाइड व्हाट आई एम. और फिर एक एक अलग डेफिनेशन मेरी वहां से तैयार हुई. यू डोंट अट्रैक्ट, यू डोंट गेट what you want, you neither get what you are, you only get at the frequency you vibrate. If you are vibrating at the wrong frequency, even if you might be deserving, you won't get the results. If you don't attract who you are, you attract someone at the frequency you vibrate. And that's where the whole the fundamental and conceptual thing works.
You know, like a lot of people say, and trust me, opposite don't attract each other. Opposite get addicted to each other. इसके ऊपर भी एक किताब है. Lot of people like Tony Robbins, Grant Cardone, and those are the people who got into divorce and other things. वो क्या कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि आपको पता था स्टार्टिंग से ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने हमको हमको खुद को सॉर्ट नहीं किया था लाइफ में. एंड he said they talk about a lot of inner stuff at the core. At the core, if you are filled with all those draining negative emotions, trust me, you are going to attract a guy who is dominating and dating a girl who is very nice, sweet, innocent. You know, she's already a victim inside. And that's the reason. भाई कोई healthy self esteem वाला person क्यों क्यों tolerate करेगा किसी का domination? No matter. It's because the guy is incomplete. He become a narcissistic, a pseudo alpha. The girl is nice, decent, but deep down she has that masculine role. और तुम फैमिली हार्श टाइप वगैरह में जाओगे, वो सब चीजें पढ़ोगे, तो आपको ये सब चीजें समझेगी. सो देन देर इज ए कंट्रोल ओवर, एंड देन यू फील देखे छपरी सा लौंडा कितनी हाई लड़की और ये वो वर्क होता है. नहीं. At the core, at the deep of their emotionals, at the root, they are same, and the same people aligned with. That's the reason कोई काटने वाला होता है और कोई कटवा लेने वाला होता है. Because at the core, if you want that, you have to work on those four elements. And we are right now, this program is only about work, only about, and we will continue this like in four phases, क्योंकि चार लग जाएंगे उसको, 4 वीकेंड्स तो लगी जाएंगे उसको पूरा कवर करने के लिए. एंड इफ यू लाइक अंडरस्टैंड रियली अबाउट दिस, इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ इनर गेम एंड आउटर गेम, बट स्पेसिफिकली इन दिस वी विल टॉक अबाउट द ईएफटी एंड इनर गेम. एंड दिस इज ऑल अबाउट हाउ द बिलीफ्स आर फॉर्म. गो थ्रू इट. इफ यू डोंट नो देन गो थ्रू द प्रोग्राम. 3 days का इनर गेम के ऊपर जो प्रोग्राम है वो. एंड इन द गेम ना इज लाइक लेयरिंग ऑफ द मास्क. हम गेम में क्या करते हैं ना, हम एक मास्क चढ़ा लेते हैं, ये मास्क लगाना है, इधर लगाना है. यू नो वी ट्राई टू शुगर कोट इट विद लॉट ऑफ टेक्निक्स. मैं करता था, मैंने क्या किया था ना, मेरे 6 ऐसे 4-5 ऐसे रजिस्टर्स भर गए थे बड़े बड़े, सब गेम का. अच्छा, टॉड वैलेंटाइन ने ये कहा है, टिम मतलब वो डेविड एंड्रू का ये लाइन है, मिस्ट्री का ये है, टाइलर का ये है, इसका ये है, उसका ये है, उसको रट लिया है, उसको दिमाग में एकदम फिट कर लिया है. तो यू नो बट डीप डाउन अभी मेरे को सूझ नहीं रहा है, तो मैं फटाफट लाइन पे लाइन मारते जा रहा हूँ, लाइन पे लाइन मारते जा रहा हूँ, वर्बल्स रन कर रहा हूँ, कैन. नथिंग इज गोइंग टू वर्क. इट्स लाइक यू नो वी ट्राइंग टू हाइड दोस इनसिक्योरिटीज एंड अडॉप्ट मल्टीपल फेसेस. ट्रस्ट मी, द रिजल्ट्स आई हैव गॉट इट इज नॉट टू द एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ गेम. कभी ऐसा भी हुआ है 10 on 10 गेम्स था साला, कब हो गया इसलिए ब्लॉक. समटाइम आई डिड नथिंग. कौस्तुभ भाई का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है. कौस्तुभ भाई ने एक बहुत अच्छी चीज बताया था, जो उनका, जो अभी उनकी रिसेंटली गर्लफ्रेंड है, वो भाई बहुत हॉट बंदी है. तो बोले भाई मैंने कुछ किया ही नहीं. मैंने बोला क्या बात कर रहा है, तो कौस्तुभ भाई बोल रहे मैं कुछ किया ही नहीं भाई. मैं मेरी पहली जो एक्स थी, मतलब उसकी एक्स थी, तो उसकी कोई तो फैमिली बीमार थी, तो उसके एक्स ने बोला था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी पहली वाली, तो उसने बोला था मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तुम जा रहे हो हॉस्पिटल, जाके आओ. तो एज अ बॉयफ्रेंड ही वेंट देयर, और वहां पे वो डॉक्टर थी. तो यहाँ पे उसने वो बैठा और वो कुछ तो भी बातें बातें हुई उनकी, तो इसने फ्रूट्स फ्रूट्स ला के दिए पेशेंट को. वहां पे बस आई कांटेक्ट हुआ, बातें बातें थोड़ी सी हुई. मैं कुछ किया भी नहीं, डायरेक्ट आया, बोला चलो यार देख, बोले इतना आसान रहता है. मैंने बोला हाँ यार, वो ये तो मैं मानता हूँ भाई, गेम कुछ किया ही नहीं, बस इनर से इतना खुश था. मैं 500 रुपये दे दिया था इसको, वहां पे जो सेवा करने वाला साफ सफाई कर्मचारी रहते हैं, उनको 500 रुपये, बिकॉज इनसाइड आई वाज लाइक सो गुड. और वो काफी स्पिरिचुअल लेवल पर प्रैक्टिस वगैरह फॉलो करता है, एंड इज अ वेरी बिग डिवोटी ऑफ सदगुरु. तो वो उसका ही, और उसके लिए वो एक्ट करता है. नाउ आई एम सेइंग कि डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस वर्क फॉर डिफरेंट डिफरेंट पीपल, एंड ही डोंट हैव एज सच इनर इश्यूज. उसको जब मैं मिला था, मेरे को लगा ही नहीं उसको कोई इनर इश्यूज है. मुझे बहुत थे भाई, मुझे तो ओपन करने के लिए 1 महीना लग गया. तो उसको उसको वो प्रॉब्लम नहीं था, उसको ये बोलो तो उसका टेक्निकलिटीज. स्टार्टिंग में जब मैं मिला था तो ही वाज नॉट
इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, करते जाना पड़ता है। तो लाइक इनर तो उसका ऐसा इशू नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट फॉर मी इट वाज लाइक गेम की मैं लेयरिंग करते जा रहा हूँ अपने ऊपर, ये लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ, वो सीख रहा हूँ। एंड एक टाइम ऐसा होने लग गया कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं उस पर बिलीव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो किसी और के शब्द हैं। वो ओवन कुक ने बोला है, आर टायलर ने बोला है, जूलियन ने बोला है, एलेक्स ने बोला है, मार्कस स्मिथ ने बोला है, सर्जिकल पिकअप में। क्योंकि मैं कम से कम 200-300 प्रोग्राम कंज्यूम करके आया था। 100-150 बुक पढ़ के आया था, 4 बुक कैंप्स लेके आया था उस टाइम पे। एंड तो क्या होता था, मैं बोल कुछ और रहा हूँ, अंदर मेरे कुछ और डायलॉग्स चल रहे। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो मेरी चीजों से कॉन्ग्रुएंट सी नहीं बैठ रही। एंड दैट्स हाउ द गेम ऑपरेट्स नाउ। इसके अलावा हमको क्या क्या चीजें पे वर्क करना है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ टाइम एंड मोस्ट ऑफ पीपल विल बी लीडिंग आउटसाइड टू डू समथिंग। बट देयर सम एस्पेक्ट, आउटर गेम ये है कि आप बाहर क्या बात करते हो, इनर गेम क्या होता है कि आप जो बोल रहे हो आप मानते हो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आप देखेंगे आपका गेम कॉन्ग्रुएंट नहीं। आप देखोगे कि गेम में ऐसा होता है, गेम में ऐसा होता है कि दो पर्सन है, ये पर्सन एक लाइन बोल रहा है, ये पर्सन एक लाइन बोल रहा है, सेम लाइन बोल रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर दोहरा रहे हैं, सेम, लेकिन इसका काम कर रहा है, इसका नहीं काम कर रहा है। अगर ये इशू है तो आई वुड सजेस्ट 3 days का वो इनर गेम प्रोग्राम देख लो, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो उसमें मैंने बताया ऐसा क्यों होता है। इट्स 3 days ऑफ वर्कशॉप, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आई शो यू द स्क्रीन ऑल्सो। ये है, दिस इज समथिंग, 3 days, इट्स फ्री अवेलेबल ऑन यूट्यूब, गो थ्रू इट। उसमें अभी ये जो है ना कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी वो फेकी फेकी लगने लग गया था मुझे। बहुत टाइम बाद गेम कर रहा हूँ और वो ऐसा लग रहा है यार ये जो मैं बोल रहा हूँ बस इधर उधर से लेके चेप रहा हूँ और ये इनग्रेन नहीं हो रहा है। और वो बोलते हैं कि यार ये स्टार्टिंग यू नीड समथिंग। Yeah, of course, at starting, if you literally don't have anything to say, it becomes a problem. Then at starting, you need something. You need theory, you need content, you need lot of things. क्योंकि मेरे दिमाग से तो अंदर से कुछ भी नहीं आता था ना। तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं बैठती थी और वो काफी फेकी लग रहा था ना। we we will understand like how does it work, remove all those things, all those blocks, what are the blocks holding you, then you can condition। फिर आप जब कंडीशनिंग करेंगे उसकी, so then inner game is a very lengthy topic. I don't want to like fuck up with like now how to use EFT and let go the negative blocks that is holding you when it comes to your inner beliefs regarding woman, attraction, dating, cold approach, sex, hookup, etc. Now this when it comes to belief, now there are, like I believe there are 10 10 factors, well I will call there are 10 blocks। 10 तरह के ब्लॉक होते हैं हर इंसान। आपको आइडेंटिफाई करना है इन 10 ब्लॉक में से कौन से एक ब्लॉक होते हैं। दीज आर ऑल लोअर लेवल ऑफ इमोशंस। आप लोअर चीजें हटा दो, अचानक से अच्छी चीजें होने लग जाएगी। As I give you the example, like these are something तो holding you, वो चीजें लेट गो कर दो। इफ यू हैव टू मच गिल्ट, शेम, एंजाइटी और उसको आपने पकड़ के रखा है और फिर आप सेल्फ हेल्प कर रहे हो, गेम कर रहे हो, ये कर रहे हो, इट वोंट वर्क। Trust me, it won't work. To some extent, it will help you, but it will just give another level of ego. There is a huge difference between ego and self-esteem. तो सिर्फ ईगो कोटिंग हो जाएगी ऊपर ऊपर से, इट्स लाइक अनदर लेयर 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 लेयर, मास्क 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 पे ऊपर। एंड दैट्स हाउ द पीपल आर, लाइक दे अचीव अ लॉट ऑफ हाइट्स बट स्टिल एट द इनसाइड दे फील हॉलो एंड एम्प्टी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ऐसे ऐसे सिर्फ आप लेयरिंग पे लेयरिंग करते जाओ। सो देर आर लाइक 10 level of things, 10 level of mental blocks, and these are, let's understand one by one, but we'll continue that tomorrow। So कुछ fears होते हैं, there might be n number of fears, अलग अलग fears होते हैं, insecurities होती है, insecurity related regarding your family, your looks, your status, your money, all
शॉर्ट टैपिंग में तो मैंने ऑलमोस्ट सभी इंक्लूड किया है। लैक होता है, कुछ लोगों को लगता है कुछ तो भी कमी है। जैसे मेरे को ऐसा लगता था यार सब कुछ है मेरे पास में, बस थोड़ा सा हाइट होती थी ना तो मजा आ जाता। सब कुछ है मेरे पास में, बाबा ने शक्ल अच्छी दी है, घर से भी पैसा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सब कुछ है भाई। सिर्फ यू नो दिस इज समथिंग यू बिलीव दैट योर समथिंग इज लैकिंग, जेलेसी। भाई गेम में भी ऐसा होता था मेरे साथ में कि यार मैं कुछ करे जा रहा हूँ और फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं कुछ तो भी कमी रह गया यार, कुछ तो भी कमी रह गया, कुछ तो भी रह गया काम करने का। यू नेवर फील समथिंग लाइक इट इज कंप्लीट। देन देयर इज अ समथिंग जेलेसी। जेलेसी तो इतनी थी भाई, यहाँ एक गेम में ऐसे कुछ तरह के लोग रहते थे, कुछ नहीं करते थे, फटाफट 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 रिजल्ट मिलते थे। और कुछ मेरे जैसे थे भाई, अपना अपना आत्मा, अपना अपनी आत्मा का अस्तित्व रख रहे हैं गेम सीखने में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो काफी जेलसी, हेटरेट वगैरह आता था, एंगर, गिल्ट, शेम, लिमिटिंग बिलीफ। हर एक बिलीफ को हमको समझना है विद द एग्जांपल, एंड दीज आर डे टू डे एग्जांपल। फॉर एग्जांपल फियर के ऊपर, सो दीज आर ऑल लिमिटिंग बिलीव्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। But right now, we'll stop here only, and we'll continue at the same time tomorrow. तो tomorrow रहेगा, after that I will be heading to Bangalore from Monday. तो next weekend I would probably doubt कि next weekend हो पाएगा या नहीं, because it will be like I will be, तो 11-12 को रहेगा, and of course the Mumbai boot camp will be there in January. So anyone who has doubt can ping me, message me, or Kaustubh. We will be there. We'll stop the recording. If anyone has questions, we will take 2 to 3 questions, not more than that. Afterwards, you have to go and out and enjoy. Okay.